we have already finished modern Indian history. ठीक है ना? So there are a few topics that remained, and this we are going to discuss. मतलब main frame of the topic has already been discussed. So one topic that we are going to discuss is communalism. ठीक है? Communalism. The development of communalism. Okay, during the period of Indian struggle for independence. कि ये सब कैसे हुआ? ठीक है? And the second important part that we still have to discuss is constitutional development topic. Constitutional development topic. ठीक है? Starting from Regulating Act 1773. Okay. So this is the second part from Indian Independence Act 1947. From Regulating Act 1773 to Indian Independence Act 1947. This part is very important. This part is very important for your prelims. Obviously it is important for mains also. So this is one segment and that is one topic. So this is one topic that we will cover in today's class, and from tomorrow we will start our discussions on these topics. Constitutional development. Now a third area third area is post independence. Post independence. Take it. Post independence. We will schedule this discussion later. Post independence, I am going to make it a separate module, and that's why I am bifurcating it. Because when I will discuss post independence, I can include so many dimensions of general studies. Okay, and that's why I want to discuss it separately. ठीक है ना? कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और इलेक्शंस पे हम बात कर लेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस, लिबरलाइजेशन तक चले आएंगे. गॉट इट? है ना? रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो भी डिस्कस कर लेंगे. ओके, so there are so many things that we can relate here. So that's why I am keeping it separate. So ये पार्ट आते आते ये हमारा मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड दिस विल बी अ सेपरेट मॉड्यूल पोस्ट इंडिपेंडेंस. ओके, एंड आई विल टेक एट लीस्ट 8 to 10 क्लासेस ऑन दिस मॉड्यूल. ठीक है, इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा. Topic which we are going to discuss today is development of, is it clear? Ara? Communalism in India. Growth and development of communalism in India. So this topic is important for our basic understanding. Okay, and this basic understanding of this topic will be helpful for you for the purpose of essay writing also, and you can use or utilize this topic in some other areas of GS जहाँ पे interlinkages और जो connectivity है यहाँ पे समझने के लिए important है, प्लस इंटरव्यू के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीलिम्स के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. बहुत सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस पहले हम कर चुके हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज ऑल दीज थीम्स इन अ सिंगल फ्रेम. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ओके, इन डिफरेंट टॉपिक्स. तो अभी हमें क्या करना है कि सबको एक साथ लेके आना है और उस हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है कि इंडिया में कॉमनलिज्म की प्रॉब्लम क्यों आई. ठीक है, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. जब इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया तो सम कॉलोनियल हिस्टोरियंस डिड व्हाट, दे डिड कॉम्युनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री का क्या कर दिया? कॉम्युनल इंटरप्रिटेशन कर दिया. दे डिड कॉम्युनल इंटरप्रिटेशन ऑफ Indian history. And when they did this communal interpretation, they used the terminologies for ancient history. They call it Hindu age. Medieval age को, medieval history वाले, medieval age वाले phase को क्या कहा? They called it Muslim age. And very smartly, ठीक है, अपने वाले टाइम को क्रिश्चियन एरा नहीं कहा, क्या कह दिया? मॉडर्न एज. देखो कितने होशियार हैं. अभी तक आपका सारा ध्यान किस बात में है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि यहाँ का ही नहीं क्रिश्चियन एरा. ठीक है, तो ये होता है हिस्ट्री का पावर. ठीक है, दे डिड नॉट यूज दिस वर्ड क्रिश्चियन एरा. तो अगर आप क्रिश्चियन एरा नहीं लिख रहे हो तो हमें ना हिंदू एरा एक्सेप्टेबल है ना मुस्लिम एरा एक्सेप्टेबल है, तो लिखो क्रिश्चियन एरा. ठीक है, why Hindu era is not acceptable, Muslim era is not acceptable? Because when you are doing period classification of history, periods को जब आप define कर रहे हो तो you are considering history as the history of the ruling elites, ruling classes.
जबकि हिस्ट्री इससे अलग की भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। पॉलिटिकल डायनेस्टीज की हिस्ट्री को कंप्लीट हिस्ट्री समझ लेना ठीक नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड technological all aspects here. So this periodic classification in the form of Hindu age, Muslim age and modern age is not good at all. ये क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं है, ओके ये उतना कंसिस्टेंट नहीं है, उतना लॉजिकल नहीं है, उतना रेशनल नहीं है। बिकॉज एंशिएंट इंडिया में वेयर देयर ओनली हिंदू रूलर्स, नो। और हिंदू वर्ड हम यूज कब से कर रहे हैं, सवाल ये है। आपने पूरे एंशिएंट एज को हिंदू एज कह दिया, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है, इन एंशिएंट इंडिया देयर वर मेनी रूलर्स हु वर inspired and motivated by some other religions also. केवल हिंदू रिलीजन तो नहीं था ना, there were other religions also, Buddhism, Jainism and all this. So how you are going to classify those rulers? अगर इनको हिंदू रूलर्स कह देंगे तो, and when you are calling this Muslim age, does it mean कि यहाँ पे हिंदू रूलर्स नहीं थे और हिंदू रूलर्स डोमिनेंट नहीं थे? थे। There were powerful Rajput rulers, so many dynasties in India, जो मिडिवल एज में भी पावरफुल डायनेस्टीज हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे बिल्कुल हिंदू रूलर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू रूलर्स है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट गुड। तो वन रीजन बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन इज टू डू द कॉम्युनल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जिससे इस बात को जस्टिफाई किया जा सके कि इंडिया में ब्रिटिश के आने के पहले जो भी डेवलपमेंट्स था इन एंशिएंट इंडिया एंड द मिडिवल इंडिया, वो एक डेस्पोटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी। देयर वाज नो एनी प्रोग्रेसिवनेस, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट था नहीं, बिकॉज कल्चरली वी वेयर इंफीरियर। तो ये बाहर से लोग आए, ब्रिटिश पीपल केम विद द आइडिया दैट वी आर सुपीरियर, ठीक है। रेशियल सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट यही तो है ना, कल्चरली वी आर सुपीरियर, ओके। तो फिर ये आइडिया लाके इम्पोज करके हमारे ऊपर कोशिश करने की, वो इम्पोज करने की कोशिश की। व्हाइट मैन बर्डन से थियरी भी दिया। तो ये बात हमको समझनी है कि एक कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन भी है इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी कि ब्रिटिश इन इंडिया वेर द लिबरेटर्स, वो मुक्तिदाता थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुक्ति दे दी पाकिस्तान दे के। मेरी बात समझ गए ना, किस तरह की मुक्ति दी देख लो, ठीक है। इधर बांग्लादेश में क्या हाल है और पाकिस्तान में क्या हाल है। तो दे वांट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज अ लिबरेटर्स, और इसके लिए वो कम्युनल प्रोपेगेंडा करेंगे। दे विल डू दिस कम्युनल प्रोपेगेंडा, बट द प्रॉब्लम इज दैट फ्रॉम हियर दिस कम्युनल प्रोपेगेंडा स्टार्टेड। जैसे मैंने आपको एक फर्क तो है दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एंशिएंट इंडिया में द इन्वेडर्स हु केम टू इंडिया, दे डिड व्हाट, दे अडॉप्टेड इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। जैसे इंडो ग्रीक्स आए, क्वेश्चन भी आता है मिनेंडर वगैरह से जो क्वेश्चन आया, इंडो ग्रीक, शकास, पहलवास, कुशानास, वेरियस ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स हु केम टू इंडिया, वो इंडिया के रंग में ढल गए, इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस को अडॉप्ट कर लिया। बट मिडिवल एज में जो आउटसाइडर्स आए, लाइक टर्क्स एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स हु केम टू इंडिया, ओके, दे डिड द अपोजिट थिंग, उन्होंने अपोजिट काम किया। अच्छा देखो, ये हिस्टोरिकल फैक्ट को हम डिनाई भी नहीं कर सकते, दिस इज नॉट गुड टू डिनाई। मेरी बात समझ गया ना, तमाम इंडो इस्लामिक सिंथेसिस के पॉइंट्स हैं, बट व्हाट इज द हिस्टोरिकल फैक्ट, द रियलिटी दैट विल ऑलवेज रिमेन अ रियलिटी। हमारे यहाँ हिस्टोरियंस की एक और प्रॉब्लम है, कई बार हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंसील कर लेते हैं, उनको लगता है इससे कॉम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। तो एक बार जर्मनी घूमने चले जाओ, ठीक है, वहाँ हिटलर के बारे में, ठीक है, हिटलर की पोल खोल किसने करी है, खुद वहाँ के लोगों ने करी है कि भाई ये ठीक नहीं था। मेरी बात समझ गया ना, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंसील नहीं करना चाहिए, इधर वी शुड ट्राई टू इंटरप्रेट हिस्ट्री ना कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो यहाँ तो है कि कोशिश हुई, और वो कोशिश क्या हुई कि एक माइनॉरिटी ग्रुप ने मेजॉरिटी ग्रुप पर अपना रिलीजियस डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। मेरी बात समझ गए, दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश द रिलीजियस डोमिनेंस ओवर द मेजॉरिटी ग्रुप, बट सम ऑफ द मुस्लिम रूलर्स रियलाइज्ड कि ये प्रैक्टिकल नहीं है रिलीजियस डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। अगर हम अपना रिलीजियस कल्चरल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू रूल, है ना, ऑन दिस लार्जर पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारा रूल कर सकते हैं, बट हमारा रूल एक टेरिटोरियल जो उसकी एक्सटेंशन होगी, लिमिट होगी, वो बहुत कम होगी, will not be able to rule the larger part or territories of India. So if we want to bring the entire India under one political rule, for that हमारी policies को क्या होना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा, जैसे अकबर। अच्छा, अकबर के बारे में आप क्या पढ़ते हो जीएस में? ऑब्वियसली जीएस में मैं क्या पढ़ाऊंगा, ही वाज अ लिबरल रूलर, ओके, टॉलरेंट रूलर इन कंपैरिजन टू द
other rulers. बट अकबर का वो जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो जो भी पॉलिसीज लाता है, जो भी सोचता है, वो एक दिन में बना के उसको बनने में टाइम लगा होगा, टाइम लगा होगा, ठीक है। हम आज जो हैं, आज से 10 साल बाद वो नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। मैं आज से 2 साल पहले था, वो आज मैं नहीं, थियरी ऑफ मोमेंटारीनेस। वैसे ही अकबर जो था, व्हेन अकबर केम टू पावर, कितने टाइम तक रूल किया आपको पता होगा, 1556 से लेकर 1605 तक। और इस पूरे के पूरे फेज में उसका जो मेकअप, साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ माइंड है, वो कई बार बदला है, ठीक है। इट पास थ्रू सम स्टेजेस। शुरुआती दौर में तो ये वही अकबर है जो उलमा, मौलाना, पीर, मजार यहाँ चद्दर चढ़ाते हुए फिर रहा, ये वो अकबर है। कुछ टाइम बाद ये इबादत खाना लेके आता है, और इबादत खाना में केवल और केवल मुस्लिम्स को रिलीजियस डिस्कोर्स करना अलाउ था, कुरान पे डिस्कोर्स करना। कुछ टाइम बाद वही इबादत खाना सबके लिए खोल दिया जाता है, द सेम इबादत खाना वॉज ओपन फॉर ऑल। और उसके कुछ टाइम बाद द इबादत खाना और हाउस ऑफ वर्शिप वॉज क्लोज, बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अकबर रिलीजियस टॉलरेंट था, तो फिर वो तौहीद इलाही लाता है, दैट इज मिस्टेकनली नोन एज दीन इलाही। तो वही केम विद द आइडिया ऑफ तौहीद इलाही। सो व्हेन यू विल रीड दिस टॉपिक इन डिटेल, जब इस बात को समझोगे तो उसका साइकोलॉजिकल मेक ऑफ माइंड कैसे बना, तो फाइनली आपको ये बात रियलाइज होगी कि द रूलर विल रियलाइज दैट रिलीजन इज अ पॉलिटिकल टूल which we can effectively use to establish power and control over the larger part of territory of India. ये बात आपको समझ में आएगी हिस्ट्री पढ़ोगे तो, कि अशोक ने कैसे रिलीजन को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया, अकबर ने रिलीजन को कैसे पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया, और जिन लोगों ने रिलीजन को पॉलिटिकल टूल की तरह इफेक्टिवली यूज नहीं किया, उनके सामने चैलेंजेस आए। मेरी बात समझ गया? आज भी क्या हो रहा है, ठीक है। इसके पहले भी क्या हो रहा था, कई बार क्या होता है, कास्ट बेस्ड इक्वेशंस होते हैं, रिलीजन बेस्ड इक्वेशंस होते हैं, और इंडिया के लोगों का थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। जैसे आप बिहार में चले जाओ, मैं बिहार से भी हूँ, यूपी से भी हूँ, तो जिस तरह की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारे एरियाज में होती है, ठीक है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं आते और वहां से इलेक्शन इलेक्शन लड़ जाते हो, तो भूल जाओ, जीतने की बात दिमाग से निकाल दो, लोग तुमको वोट नहीं देंगे। वो सोच के चलते हैं कि भाई मेरी कास्ट का है कि नहीं, मेरी जाति का है कि नहीं, मेरे धर्म का है कि नहीं, और इसमें सुधार नहीं आने वाला है। मेरी बात समझ गए? इफ यू आर बिलोंगिंग टू दिस स्टेट्स ऑफ बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, और भाई हमारा स्टेट पिछड़ा हुआ है, ये वाले स्टेट आगे, वो वाले स्टेट आगे निकलते जा रहे हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप उन रिलीजियस कॉम्प्लेक्शन से और कास्ट बेस्ड कॉम्प्लेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो। आज बताओ, अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को, ठीक है, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोग तैयार है? यस और नो? नहीं। कुछ लोग हैं, देयर आर सम पीपल हु आर लिबरल, those who are living in the villages, okay, and they are just participating in some economic activities, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर होम सिकनेस इतना ज्यादा है कि वो गांव छोड़ के बाहर नहीं निकलना चाहते, ठीक है। एक भोजपुरी गाना है कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, मतलब गांव में ही रहना है, ठीक है, रूखा सूखा खाना है और वहीं पे जीवन बिताना है। मेरी बात समझ गया ना? बट जब तक आप गांव नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको ज्यादा प्रोस्पेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज की नहीं मिलेगी। शहरों में क्या है, इन सिटीज व्हाट वी सी, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वहां पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है जॉब्स की और एम्प्लॉयमेंट की। तो इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस, यू नीड व्हाट, पार्टिसिपेशन इन जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, यू नीड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, and there is a greater probability to participate in economic activities if you migrate to the place where economy is more diversified। जहां पे इकोनॉमिक ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, वहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। इफ यू सी एनी न्यू प्रोस्पेक्ट, यू मस्ट ऑप्ट फॉर दैट, एंड दिस इज व्हाट, प्रोग्रेसिवनेस। यही क्या है, प्रोग्रेसिवनेस। जैसे मैं मान लो टीचर हूं, और कल के डेट में यूपीएससी कह दे कि हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं तो टीचर हूँ, कॉमर्शियल एजुकेटर, तो यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं कुछ नया एक्सप्लोर करूंगा कि क्या मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता हूँ क्या, ठीक है। क्या कुछ नहीं दिखेगा तो फिर मोमोज की दुकान खोलनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू ऑप्ट फॉर न्यू थिंग्स, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियंस,
ट्रेडर्स मर्चेंट्स कहाँ से आए? इंग्लैंड से आए, ठीक है, और कहाँ आके रहने लगे? इंडिया में आके रहने लगे, इंडिया में आके सेटल हो गए, घर बना लिया, जमीन ले ली, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ तो जैसे कि ये मतलब क्या कहते हैं, जैसे नैनीताल और ये सारी चीजें, कुछ ऐसी जगह है ना, वैलीज जहाँ पे, दून वैलीज जहाँ पे कि उन्होंने अपनी जगह बनाई, क्लाइमेट वाज गुड, ठीक है, ये एक रीजन है। बट आप सोचो कि इंग्लैंड से कोई आके इंडिया में सेटल हो जा रहा है और उसके मम्मी पापा गाना नहीं गा रहे, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हिंदुस्तान में तो यही कहानी है, ठीक है, घर छोड़ के मत जाओ, परिवार छोड़ के मत जाओ, देश छोड़ के मत जाओ, ठीक है। अंग्रेजों ने कभी इस तरह का गाना नहीं डिजाइन किया, चिट्ठी ना कोई संदेश, ठीक है, हालांकि उसका पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है, उस गजल का मायने अलग है, लेकिन फिर भी होम सिकनेस हम इंडियंस में कितना ज्यादा है कि नहीं, मानते हो ना? होम सिकनेस है, सब में नहीं है, तो जिसके अंदर होम सिकनेस नहीं होगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा मामला जो है ना, वो जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया। वो कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट से कैसे जुड़ा है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन थिंग, अ रिवोल्ट, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बारे में हमने डिस्कस किया ना, रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन इंडिया मुगल रूल कब से कब तक है? मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है, मुगल रूल इन इंडिया, तो इसको हम काउंट करेंगे 1526, ठीक है, से लेकर, और इसको हम 1707 एडी, और फिर एक और डेट लिखते हैं, दैट इज 1857-58, ये वाला टाइम पीरियड लिखते हैं, 1857-58, गॉट इट? 1526, 1707, 1857, 58. So in this period we see what? This period is the phase of Mughal rule, where mighty Mughal rulers are ruling. All were not mighty, some were powerful. Mighty Mughal rulers were ruling. Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. Okay. And after this, we see a decline in Mughal power. This period is what? Decline in Mughal power. यहाँ पे क्या है? Decline in Mughal power. Decline in Mughal power है, ठीक है, Declining phase. और इसी डिक्लाइनिंग फेज में वी सी दैट ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट एन इंपॉर्टेंट विक्ट्री by the name of Battle of Plassey, then Battle of Buxar, then got Diwani rights by this Treaty of Allahabad, and gradually East India Company, I am using the word gradually, it did not happen all of a sudden, ये धीरे धीरे हुआ, gradually it established itself as a political power, इसने खुद को क्या किया? पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। It did not happen in a single day. It was a gradual expansion. Gradually, a trading company has established itself as a political power. What is this? This trading company has given monopolistic rights by British Crown. Crown ने दिया है. The trading company was supported by military. Military force or military might was behind this trading company. This trading company was fighting wars also. तो क्या इस ट्रेडिंग कंपनी के एक्ट को आप इंपीरियलिस्ट एक्ट नहीं कहोगे क्या? बताओ, इंपीरियलिस्ट एक्ट कहोगे? देखो, कई लोग उलझ जाते हैं, इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म, ठीक है, उनको लगे अरे मैं गलत बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, दिस इज इंपीरियलिस्टिक एक्ट। द ट्रेडिंग कंपनी पावर इज सपोर्टेड बाय मिलिट्री फोर्सेस एंड दीज मिलिट्री फोर्सेस आर बैक्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। सो इनडायरेक्टली हियर व्हाट वी सी, एक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म, एंड दिस इनडायरेक्ट एक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म हैज बीन प्रमोटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस फेज व्हाट? द फेज ऑफ इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। इसीलिए तो इसको हम फेज ऑफ इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल कहते हैं, गॉट इट? एंड दिस विल बी कंटिन्यू टिल 1858। 1858 तक ऐसा ही है। कंपनी और मेट्रोपॉल दोनों के बीच में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड मेट्रोपॉल, पूरा लैला मजनू वाला रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। बट व्हाट विल हैपन इन 1858? India will come under direct British. So Britain is an imperial power, and now India comes under a direct British. अब उसके बाद इंडिया क्या है ब्रिटेन का? बताओ, कॉलोनी। आफ्टर दिस वी सी इंडिया का स्टेटस क्या है? स्टेटस इज कॉलोनी।
ठीक है, क्या इसके पहले इंडिया का स्टेटस कॉलोनी का है? 1858 के बाद इंडिया का स्टेटस क्या है? कॉलोनी। ठीक है, सो वी सी व्हाट इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ऑल दिस स्टार्ट्स योर 1858 ऑनवर्ड्स। और इंपीरियलिज्म में भी एक नया वर्ड जुड़ जाता है 1870 के बाद। हिस्टोरियंस ऐड दिस न्यू वर्ड, दैट इज व्हाट? न्यू इंपीरियलिज्म। मेरी बात समझ गया ना? न्यू इंपीरियलिज्म, ये भी तो वर्ड आ जाता है ना, न्यू इंपीरियलिज्म। चलो, ये पूरा का पूरा हो रहा है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज इन इंडिया टू डू ट्रेड एंड कॉमर्स। ग्रेजुअली दे विल एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स। और ट्रेड एंड कॉमर्स में जो ट्रेडिशनल मर्चेंट्स हैं, these traditional merchants now are overpowered by the merchants and traders of East India Company. अब ज्यादा बड़ा ट्रेड किसका है? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी कि ये एक elite क्लास है, ट्रेडिशनल ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। अब उनका भी एक, उनके ऊपर भी एक नया बॉस आके बैठ जाता है, सुपर elite क्लास। वो सुपर elite क्लास कौन है? EIC ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। इसका मतलब आप ट्रेड एंड कॉमर्स करो, बट आपको क्या करना हो? आप अगर in tuning or in sync with this EIC traders and merchants, then you will gain enormous profits. आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, बट आपको बॉस की तरह नहीं काम करना पड़ेगा। आपको कैसे काम करना पड़ेगा? एसोसिएट्स की तरफ काम करना पड़ेगा। तो ये तो इकोनॉमी में चेंजेस है। क्या पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं? यस। 1757 के बाद, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, व्हाट वी सी दैट ग्रेजुअली रीजनल पावर्स वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। रीजनल पावर्स को धीरे धीरे कौन कंट्रोल करने लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे मान लो आपको मैंने एंग्लो मैसूर वॉर बताया, एंग्लो मराठा वॉर बताया, तो दीज वर द पावरफुल एम्पायर्स इन इंडिया ना। ठीक है, पावरफुल रूलर्स इन इंडिया, पावरफुल डायनेस्टीज। धीरे धीरे इनको भी कौन कंट्रोल कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मराठास हो, मैसूर हो, रीजनल पावर्स। अच्छा, सेंट्रल अथॉरिटी कौन था? सेंट्रल अथॉरिटी वर द मुगल्स। ठीक है, और 1707 के बाद वाला फेज क्या है? डिक्लाइनिंग मुगल पावर। इट मींस मुगल पावर तो है, बट वो क्या है? नॉमिनल, वीकर है। ठीक है, और ग्रेजुअली उनकी जगह पे अब उस पॉलिटिकल वैक्यूम को कौन फिल कर रहा है? ओके, सो दैट इज द कंपनी। ठीक है, और 1858 के बाद तो सीधा सीधा क्या है? ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट्स द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चल रहा है साथ साथ। अच्छा, मुगल पीरियड इन इंडिया। मुगल पीरियड में जो मुगल स्टेट था, वाज इट अ थियोक्रेटिक स्टेट और अ डेमोक्रेटिक स्टेट? थियोक्रेटिक स्टेट। वहां पे स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम। तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मुस्लिम एज किया गया, उसके पीछे एक रीजन भी यही था कि जब द नेचर ऑफ स्टेट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट। तो मुगल पीरियड में द नेचर ऑफ द स्टेट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट एंड द स्टेट रिलीजन वाज इस्लाम। नाउ टेल मी दैट इन रूलिंग elites, क्या आप इस बात को मानते हो कि देयर विल बी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स? They will be counted as important among the ruling elites. Different group of Muslims were there. There were different group of Muslims. There were different group of Muslims who were considered as the ruling elites during the Mughal period. जो ruling elites थे, जो जागीरदार हो सकते थे, got it? Regional rulers हो सकते थे, different group of Muslim groups were the ruling elites. क्या हिंदू ruling elites थे कि नहीं? Yes, they were. हिंदू ruling elites भी थे, हिंदू रूलिंग elites भी थे, but mainly who will be more prominent, Muslim ruling elites or Hindu ruling elites in this age? Muslim ruling elites will be more prominent, ये ज्यादा prominent होंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर स्टेट थियोक्रेटिक स्टेट है और स्टेट रिलीजन इस्लाम है, तो बताओ कि इस्लामिस्ट प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स, they will be given prominence or not? Yes, there are some rulers, okay, where liberal interpretations of Islam will be promoted, but this is not possible for all. हमेशा possible नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो इस्लामिस्ट ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स हैं वो प्रोमिनेंट, और ये अचानक नहीं हो गई। जैसे मैंने आपको एक इसके पहले भी एग्जांपल दिया था कि 13th 14th सेंचुरी का टाइम है और अमीर खुसरो क्या लिखता है? ही टॉक्ड, ओके, वो विमेन फ्रीडम की भी बात करता है और उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की भी बात करता है एट द सेम टाइम। ओके, सो दैट वाज द, उस समय का जो साइकोलॉजिकल मेकअप था लोगों का वो वैसा ही था। ठीक है, कि वुमेन को क्या करना है? दे शुड बी अलाउड
फॉर म्यूजिक, डांस, ये सब सीखना जरूरी है, बट टू अ ओके एज। एक सर्टेन एज के बाद ये ठीक नहीं है, बिकॉज दिस विल ब्रिंग इल फेम टू देम। एंड देन उसके बाद क्या बताया कि सारा कसूर आंखों का है। फिर आ गया चिलमन, उसको हम क्या कहते हैं, चिलमन, ठीक है, कि आंखों के ऊपर एक पर्दा जैसा ऐसा कुछ देखा होगा आपने फिल्म में, ठीक है। बॉलीवुड की फिल्मों में अभी भी कभी कभी कुछ आइटम सॉन्ग में दिख जाएगा वो आपको, उसको कहते हैं चिलमन, ठीक है ना। तो जो फेस है इसको कवर कर लो, चिलमन। बट जैसे ये टाइम पीरियड आगे बढ़ता चला जाएगा, हम क्या देखेंगे, चिलमन धीरे धीरे क्या बन गया, बुर्का, ठीक है। अब बताओ गलती किसकी है, बुर्का पहनना किसको पड़ा, ठीक है। अच्छा देखो, इसके बाद हिंदू हिंदू सोसाइटी में क्या आ जाएगा, घूंघट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है, कई सारे रीजन है, जिसमें एक रीजन ये है कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स आ रहे हैं, द इन्वेडर्स इन इंडिया, उसमें क्या है कि स्लेव्स का भी कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल इन्वेड अ टेरिटरी एंड वुमेन विल बी टेकन एज स्लेव्स। मेरी बात समझ गया। सपोज देयर इज अ हिंदू टेरिटरी एंड देयर आर मुस्लिम इन्वेडर्स, दे आर इन्वेडिंग द टेरिटरी, सो वुमेन विल बी टेकन एज स्लेव्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यंग एंड ब्यूटीफुल वुमेन विल बी सेपरेटेड, ठीक है, और बाकी लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगा दिया जाएगा। अब यंग एंड ब्यूटीफुल वुमेन, इनको म्यूजिक, डांस, ये सब में एक्सपर्ट किया जाएगा। जिस रूलर के पास जितनी खूबसूरत डांसर होगी वो उतना पावरफुल होगा। जैसे मान लो कि आकाश है और आकाश के कोर्ट में एक खूबसूरत डांसर है और उसके बगल का रूलर जो है बिपिन है, वो उससे ज्यादा पावरफुल है। तो आपके कोर्ट में कितनी पावरफुल डांसर है, ठीक है, ये इस बात को दिखाता है कि आप बहुत पावरफुल हो। क्योंकि अगर आपसे कोई ज्यादा पावरफुल हुआ ना, तो स्त्री 2 में देखो वो सरकटा आता है और तमन्ना भाटिया को उठा के ले जाता है, वही कहानी हो जाएगी। अगर आपसे कोई दूसरा पावरफुल होगा तो वो उस वुमेन डांसर को लेके जाएगा, ठीक है। इसको लोग किस चीज से जोड़ लेते थे, ग्लोरी के साथ जोड़ लेते थे। एंड वुमेन विल बी ट्रीटेड एज स्लेव्स। मेरी बात समझ गया ना। वुमेन को क्या किया जा रहा है, स्लेव्स की तरह भी ट्रीट किया जा रहा है। मुस्लिम सोसाइटी में हरम्स हैं, मुस्लिम रूलर्स के यहाँ हरम्स हैं, ठीक है। हिंदू रूलर्स के यहाँ भी कॉन्क्यूबिनेज सिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना कहीं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी विल बी प्रोमोटेड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सम रूलर्स ये ऑर्थोडॉक्सी का लेवल क्या होगा, कम होगा, बट विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, हमेशा कम लेवल नहीं होगा। तो मुगल स्टेट में क्या है, रूलिंग क्लास इज मुस्लिम, इलीट क्लास इज मुस्लिम, ऑर्थोडॉक्सी इज देयर। और जब ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी होगी तो ऑब्वियस है कि जो न्यू नॉलेज है उसके प्रति आपका ओरिएंटेशन क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ गया ना। जैसे टेक्नोलॉजी आई तो आपको टेक्नोलॉजी, अगर एज ए टीचर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे। जैसे मैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहा होता तो अभी मोमोज की दुकान खोलनी पड़ जाती मुझे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है मुगल रूलर्स के केस में, देखो मुगल रूलर्स को रिप्लेस कौन करता है, मुगल रूलर्स और मुगल नोबिलिटी क्लास, इसको रिप्लेस कौन करता है, ब्रिटिश, ब्रिटिश पीपल, यस, ब्रिटिश नोबिलिटी क्लास, यस। एंशियंट टाइम से है। देखो अब पूछे तो मैं बता दे रहा हूँ, इट विल टेक 5 मिनट्स। कॉन्क्यूबाइंस का जो सिस्टम है ना, जैसे अभी हीरा मंडी का एग्जांपल दिया विपिन ने, तो जैसे ही आप हरम की बात करते हो तो आपके दिमाग में किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, मुस्लिम रूलर्स का, कि हरम होते थे। भैया हिंदू रूलर्स के भी होते थे। एंशियंट टाइम में गुप्ता पीरियड के पहले से ही कॉन्क्यूबाइंस का कॉन्सेप्ट था। कॉन्क्यूबाइंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्क्यूबाइंस का मतलब है कि वन पर्सन, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज इन रिलेशन विथ सम फीमेल, ओके, बट डज नॉट वांट टू मैरी दैट फीमेल और दैट वुमेन, ठीक है। मतलब वन मेल हैविंग रिलेशंस विद अ फीमेल बट डज नॉट वांट टू मैरी, वो शादी नहीं करना चाहते। क्यों शादी नहीं करना चाहते, सोचो क्यों शादी नहीं करना चाहता। एंशिएंट इंडिया, कास्ट रिजिडिटीज, मेरी बात समझ गया ना। कास्ट रिजिडिटी समझ गए। इफ शूद्रा एंड ब्राह्मण विल गेट मैरिड, ठीक है, इफ मदर इज ब्राह्मण, ठीक है, एंड द husband is shudra, if they will get married the child will be called chandal। और वो अनटचेबल्स में भी, जो कह सकते हो कि अनटचेबल्स में भी जो सबसे है ना, मतलब दे आर कंसिडर द वर्स्ट काइंड ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा, चंडाल, आउटकास्ट उसको कहा जाता है। तो द चिल्ड्रन विल नॉट गेट सोशल वैलिडेशन ना, सोशल वैलिडेशन मिलेगा बच्चों को, नहीं मिलेगा, तो उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अगर लोग
शादी करना भी चाहते हैं तो अवॉइड करते हैं उस चीज को। ऐसे ये सिस्टम हुआ शुरू, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्क्यूबाइंस। और उसके अंदर भी आगे चल के लॉ बुक्स में अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई, है ना। कि अब इसके बाद ये चीज कहाँ आ गई, इंडियन रूलर्स के साथ भी आ गई, हिंदू रूलर्स के साथ भी आ गई। अब हिंदू रूलर्स के साथ कहानी क्या है कि देयर आर वुमेन, ओके, फॉर एग्जांपल 1 वाइफ, 2 वाइफ, 3 वाइफ, दीज आर द वाइफ, वैलिडेट, सोशली वैलिडेटेड वाइफ्स। इसके बाद देयर आर कॉन्क्यूबाइंस इन पैलेसेस आल्सो, कॉन्क्यूबाइंस भी है, ठीक है। बट कॉन्क्यूबाइंस के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि रूलर उनके साथ पार्क में नहीं बैठ सकता, उनके साथ जोक वोक नहीं शेयर कर सकता, उनके साथ गाना नहीं गा सकता। मेरी बात समझ गया ना। इट मीन्स इंटीमेट फीलिंग्स विल बी शेयर्ड ओनली विद द वुमेन, बट कॉन्क्यूबाइंस वेयर देयर। और हिंदू रूलर्स की वाइफ बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी, ठीक है। कॉन्क्यूबाइंस परमिटेड थी, बट वो कॉन्क्यूबाइंस को किंग के साथ ज्यादा घुलने मिलने नहीं देती थी, और इन कॉन्क्यूबाइंस को इन फ्यूचर रूलर बनने की परमिशन नहीं थी, या उनके बच्चों को रूलर बनने की परमिशन नहीं थी। बट मुस्लिम रूलर्स के केस में अलग है, हरम है। इन हरम देयर आर द you can say that wives of the ruler also, Muslim rulers also, and there are, okay, you can say other girls with means slaves, you can say। तो दूसरी लड़कियां भी हैं हरम में। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा फ्रीडम ज्यादा है हरम में रहने वाली लड़कियों को। अगर हरम में रहने वाली दूसरी लड़की, अगर उसने किंग को इम्प्रेस कर लिया, सुल्तान को इम्प्रेस कर लिया, तो वो रानी भी बन सकती है, जो हिंदू रूलर्स के यहाँ पॉसिबल नहीं था। जैसे शाह तुर्कान, इल्तुतमिश, शाह तुर्कान, मिडिवल में पढ़ोगे। शाह तुर्कान क्या थी, हरम में रहने वाली स्लेव थी, ठीक है। बस उसने किसको, इल्तुतमिश को इम्प्रेस कर लिया, वो क्या बन गई, रूलर बन गई, ठीक है। तो ये बड़ा एक मतलब वो टॉपिक है कि कहीं पे फ्रीडम भी है, कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस भी। शाह तुर्कान उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल। लेकिन फिर भी, है ना, मैंने कहा कि कंप्लीट फ्रीडम और ऐसी चीजें नहीं है, वो बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। वो जो था, जो आपको एक मैंने कहानी सुनाई थी जहांगीर की और नूरजहां की, याद है ना। तो नूरजहां तो किसी और की बीवी थी ना, पसंद आ गई किसको, जहांगीर को। ये बिल्कुल वैसे ही था, नूरजहां का हस्बैंड जो था ना, जैसे मान लो गांव में कोई आदमी रह रहा है और लड़की एकदम हाई फाई है, मुंबई से आई है, शादी वादी हो गई, गाँव वालों को दिखाता है उसको बुलेट चलाना सिखा रहा है, और उसी गांव में कोई आदमी दबंग रहता है, उसको तुम्हारी बीवी पसंद आ गई, फिर क्या होगा। ये मिडिल एज में यही होता था, जहांगीर के साथ यही हुआ था, ठीक है। नूरजहां शिकार पे गई थी अपने हस्बैंड के साथ, उसने तीर चलाया, शेर मरा और जहांगीर घायल हो गया। उसके बाद नूरजहां किसकी बीवी बन गई, जहांगीर की बीवी बन गई। तो फोर्सफुली था ना यार, बताओ, फोर्सफुली तो था, ठीक है। बट दैट वाज वैलिडेटेड, उसको वैलिडेट किया गया। तो द मैसेज हियर इज, मुगल रूलर्स और द मुगल नोबिलिटी क्लास, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश नोबिलिटी क्लास। मेन तो मुगल रूल ही था। अब बताओ, जो ब्रिटिश नोबिलिटी क्लास है, ब्रिटिश है, वो किसको ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश करें। अगर आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से देखोगे, हिंदूज को या मुस्लिम्स को, मुस्लिम नोबिलिटी क्लास को। मेरी बात समझ गया ना, मुस्लिम नोबिलिटी क्लास को सप्रेस करेंगे। और होता क्या है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब होता है, तो इन रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हाट वी सी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज सी। यहां तो दिख गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और ये और खतरनाक था अंग्रेजों के लिए, बिकॉज यहाँ सेपॉइज, हिंदू सेपॉइज, ब्राह्मण सेपॉइज ऑल्सो, सबने मिलके ये कहा कि व्हाट इज द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, सो द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वाज टू रीस्टोर मुगल रूल इन इंडिया। दैट इज द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कि मुगल रूल को क्या करना है, रीस्टोर करना है इंडिया में। मेरी बात समझ गए, ये था पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अब अंग्रेज टेंशन में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इज टू रीस्टोर मुगल रूल, यानी हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुगल रूलर वापस आता है। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है ना। सो आफ्टर 1857 व्हाट विल बी द नेचुरल आउटकम और द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। हमें पता है कि दिस रिवोल्ट वाज फोर्सफुली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, फोर्सफुली सप्रेस्ड। Some local rulers and zamindars proved as the breakwaters in the storm. They helped British. British got time and finally they suppressed this revolt. इसके बाद क्या होगा, those who participated in the revolt will be punished. जिसने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इवन बहादुर शाह जफर was executed. He was sent to Rangoon where he died an unknown death,
ठीक है ना. तो बहादुर शाह जफर was executed. The sepoys, the leaders of the sepoys, they would also be punished. Does not matter they are Hindus and Muslims, उनको पनिश किया जाएगा. जिनका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है उनको पनिश किया जाएगा. नाउ अबाउट कॉमन मासेस की तरफ, लीडर्स को तो एग्जीक्यूट किया ही जाएगा, बिकॉज इन दिस वे यू आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल कि दोबारा लोग रिवोल्ट ना करें. बट पार्टिसिपेंट्स में केवल लीडर्स थे कि उनको सपोर्ट करने वाले में कॉमन मासेस भी थे? ये बताओ. कॉमन मासेस भी थे. ठीक है, लीडर्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कॉमन मासेस को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है. आजकल पुलिस वैन पे सीसीटीवी लगा दिया गया इसीलिए कि कोई मूवमेंट करोगे तो तुम्हारा फोटो आ जाएगा, फिर तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा. ठीक है, तो इट वाज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉमन मासेस. और कॉमन मासेस में हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ वेर देयर, दोनों है. नाउ व्हेन ब्रिटिश अथॉरिटीज विल टेक एक्शन, कॉमन मासेस पे भी एक्शन होता है ना, बताओ, लीडर्स के अलावा. So they will take selective administrative action. Selective administrative action. और यहाँ पे जो selective administrative action है वो किसके खिलाफ है? मुस्लिम्स के खिलाफ. ठीक है, मुस्लिम्स को टारगेट किया जाएगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल. मान लो हम सब रिवोल्ट में एक साथ गए और आप में से 5 लोग मुस्लिम हैं, ब्रिटिश अथॉरिटीज उठा के लगेगी ये था रिवोल्ट ऑफ 1847 में. बाकी हम लोग चुप है, नहीं हम अच्छा हुआ इसको पता नहीं लगा, हम बताएंगे नहीं. अब बताओ, 5 हम सब दोस्त हैं, 5 people were arrested by the British police authorities. पुलिस उनकी पिटाई कर रही है, वो कहेंगे यार बाकी लोग भी तो थे, उनको पकड़ के लाओ. उन्होंने कहा नहीं वो तो कह रहे थे वो शामिल नहीं थे. फाइनली क्या रिएक्शन होगा उन 5 लोगों का जो अरेस्ट होके गए? वो कहे हम भी नहीं थे भाई, वी वर नॉट सपोर्टिंग रिवोल्ट ऑफ 1847. और ब्रिटिश चाहते ये थे, ब्रिटिश वांटेड टू डू दिस. ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हेन विल दे विल स्टार्ट टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. और ये सिलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में ये भी होगा कि deliberately they will not be given opportunity to serve, okay, or they will not be given opportunity, equal opportunity in jobs and employment. तमाम तरीके होते हैं ना आपको नौकरी से बाहर करने के या नहीं लेने के. तो अब मुस्लिम्स पे वो एक्शन शुरू हो गया. अब इस सारे के सारे फेज में सर सैयद अहमद खान, यू ऑल आर फैमिली विद द नेम ऑफ सर सैयद अहमद खान, जिनके बारे में बताया था मैंने, सर सैयद अहमद खान, वो सारा का सारा डेवलपमेंट मॉनिटर कर रहा है. ही वाज लुकिंग टू ऑल दीज डेवलपमेंट्स. अच्छा, दूसरा क्या था, हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स भी स्टार्ट हो चुके थे. सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल. कभी ये स्टार्ट हुआ था आपको पता है? 1828 में. तो अगर हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स भी शुरू हो चुके हैं जिसमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी हैं, तो बताओ हिंदू सोसाइटी मुस्लिम सोसाइटी से आगे निकलेंगे? इनका पार्टिसिपेशन जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और इधर क्या हो रहा है, मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम एलीट क्लास को रिप्लेस करके ब्रिटिश आया तो ऑब्वियस है सप्रेस करेंगे. रिवोल्ट ऑफ 1847 के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है. ऐसी कंडीशन में व्हाट विल हैपन? ओके, अच्छा, मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म्स कब आया? मुस्लिम सोसाइटी रिफॉर्म 1875. तो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स? 50 इयर्स, 50 साल पीछे मुस्लिम सोसाइटी, 50 साल पीछे. और बताओ, अलीगढ़ मूवमेंट के पहले रिवाइवलिस्ट रिफॉर्म्स थे कि नहीं मुस्लिम सोसाइटी में? रिवाइवलिज्म बताया ना आपको उस चैप्टर में. और रिवाइवलिज्म में कोशिश क्या हो रही थी कि जो ओल्ड इस्लामिक स्कूल है और प्रिंसिपल्स हैं उनको दोबारा लाया जाए. इस्लाम शुड बी मेंटेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, प्रिस्टीन फॉर्म. आप बताओ इससे और प्रोग्रेसिवनेस आएगी कि वो और पीछे चले जाएंगे, और पीछे चले जाएंगे? तो एक तो ऑलरेडी सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है यहाँ पे, एक रीजन यही है कि मुस्लिम एलीट क्लास इज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश. दूसरा है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स केम लेटर. ठीक है, देयर इज अ 50 इयर्स लैग. तीसरा पॉइंट क्या है कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट अमंग द मुस्लिम्स. रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के फोकस में एजुकेशन को प्रमोट करना नहीं होता था प्राइमरी. उनका फोकस होता था कि जो कुरान है या इस्लामिक टीचिंग्स है उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में इंप्लीमेंट करवाया जाए. ठीक है, उनको लगता था कि जो इस्लाम है या मुस्लिम सोसाइटी है ये डाइवर्ट हो गई है. अगर आप इंग्लिश पढ़ने लगे तो उनको लगा ये तो डाइवर्ट हो गया, इसको कुरान पढ़ना चाहिए था, इसको कलमा पढ़ना चाहिए था, तुम डाइवर्ट हो गए. इस तरह की बात आएगी. तो बताओ क्या ये सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी कि बैकवर्डनेस का शिकार होगी? तो बैकवर्डनेस का शिकार हो रही थी ये सोसाइटी. सर सैयद अहमद खान वाज ऑब्जर्विंग ऑल दिस. ठीक है ना. देन सर सैयद अहमद खान रोट अ बुक. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? पहले भी आपको क्लास में बताया था, असबाब ए बगावत ए हिंद. असबाब मीन स्टोरी,
असबाब ए बगावत हिंद मीन्स रिवोल्ट ऑफ 1857 कि द स्टोरी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इन दैट स्टोरी ही क्लैरिफाइज कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुस्लिम्स में कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी की नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और मुस्लिम्स इंडिया में ब्रिटिश प्रेजेंस, जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, इसको बनाए रखने में हेल्प करेंगे। ये बात कौन कर रहा है? सर सैयद अहमद खान। और वह ऐसा क्यों कह रहे हैं बताओ? क्योंकि एजुकेशनल रिफॉर्म्स को इनिशिएट करना है मुस्लिम सोसाइटी। एंड हाउ दीज एजुकेशनल रिफॉर्म्स विल बी इनिशिएटेड? कैसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स को इनिशिएट कर पाओगे? खुद सोच के बताओ। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो क्या आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर पाओगे? क्या आप मुस्लिम सोसाइटी के यूथ को जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन दिला पाओगे? द आंसर इज नो। सो दिस इज द लार्जर विजन ऑफ सर सैयद अहमद खान कि हमें क्या करना है, हमें मुस्लिम सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर करना है। इसके लिए मुस्लिम सोसाइटी के यूथ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में, और जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए मुस्लिम सोसाइटी यूथ मस्ट बी फैमिलियर विद द न्यू एंड एडवांस लर्निंग। And in order to make you familiar with the new and advanced learning, what is needed? Educational reforms are needed. For this, educational institutes are needed. And for developing these educational institutes, you need what? Colonial administrative support, not colonial suppression. तो कॉलोनियल सपरेशन ना हो और सपोर्ट मिले, इसीलिए अंग्रेजों की, ठीक है, तरफदारी करनी शुरू कर दी। बाद में डब्ल्यू हंटर की एक बुक है द इंडियन मुस्लिम्स, उसको स्पेशली टास्क दिया गया था कि पता करो क्या अभी भी मुस्लिम माइंड्स में, मुस्लिम लोगों के दिमाग में ब्रिटिश शासन के प्रति उतना ही जहर, उतना ही नफरत फैला हुआ है जितना ये 1857 के टाइम पर था या उससे पहले था। डब्ल्यू हंटर वाज गिवन दिस टास्क to investigate or inquire that whether the Muslim minds are filled with the same kind and level of hatred that was present or seen during the revolt of 1857. डब्ल्यू हंटर रिसर्च करता और लिखता है इस बात को, कहता है कि नो, ओके, द हैट्रेड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, द एनमिटी अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल इन द माइंड्स ऑफ द मुस्लिम्स हैज कम डाउन। वो नफरत धीरे धीरे क्या हो गई है? कम हुई है। यानी कि अब मुस्लिम क्लास जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है इसको सपोर्ट करने की स्थिति में है। मेरी बात समझ रहे हो ना? चेंज ऑफ आउटलुक, ओके। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी कदम यूं नहीं उठाती, ऐसे ही उसने नहीं मुस्लिम लीग बनवा दिया 1906 में, पहले पूरा रिसर्च किया। और दूसरी तरफ क्या हो गया था? 1875 अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड। मेरी बात समझ गया? तो देखो, this part of Sir Syed Ahmad Khan, where he thinks that the social and economic progress in the Muslim community can be promoted by promoting educational reforms, और इसके लिए हमें colonial administrative structure को help और support करना पड़ेगा, इसको भी मैं गलत नहीं मानता हूं। मेरी बात समझ गया ना? इसको गलत हम नहीं मानते, ठीक है भाई, मेरी बात समझ गए ना? आज के टाइम में भी तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। जैन कम्युनिटी, वो लोग पैसा देते हैं कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर सके, ठीक है। ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज हैं, दे सपोर्ट, दिस इज नॉट गुड। रिलीजन में भी होता है ऐसा, ठीक है। बट इसके बाद जो सर सैयद अहमद खान का ओपिनियन था वो सही नहीं था, ठीक है। अब देखो सर सैयद अहमद खान क्या सोच रहे हैं। सर सैयद अहमद खान ही सेड व्हाट, दैट देयर इज ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल है इंडिया में। अच्छा, बंगाल में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स था, और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो बंगाल में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे हिंदू सोसाइटी में, देयर वाज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट द सोशल यूनिटी एंड रिलीजियस यूनिटी ऑफ द पीपल। लोगों के बीच सोशल यूनिटी और रिलीजियस यूनिटी को क्या करो? प्रमोट करो। इससे क्या बढ़ेगा? सेंस ऑफ वननेस, और इस सेंस ऑफ वननेस की वजह से इंडिया में क्या प्रमोट होगा? नेशनलिज्म प्रमोट होगा। और जब नेशनलिज्म प्रमोट होगा तब तो हम कॉलोनियल स्ट्रक्चर को डेमोलिश कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए? इफ यू वांट टू फाइट विद द ब्रिटिश, वी नीड टू डेवलप दिस। सर सैयद अहमद खान वाज रियलाइजिंग दिस। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या रियलाइज किया कि इन इंडिया देयर इज द डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिस्ट थॉट्स, ठीक है, वो सब कुछ हो रहा है, ओके। जैसे 1885 में कांग्रेस भी तो आती है आगे चल के, उसके पहले रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं।
आरपीएस, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे के पूरे फेज में सर सैयद अहमद खान ने रियलाइज किया कि अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी डिमांड फॉर इंडियाज फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। और मीनिंग ऑफ इंडियाज फ्रीडम और इंडिपेंडेंस इज व्हाट? ओके, द ब्रिटिश अथॉरिटीज विल लीव इंडिया। ब्रिटिश कहां से चले जाएंगे? हिंदुस्तान से चले जाएंगे, लिविंग इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। जैसे 1858 से तो ब्रिटिश रूल है, यानी जब ब्रिटिश रूल खत्म होगा तो इंडिया किसके हाथ में आ जाएगा? इंडियंस के हाथ में आ जाएगा। एंड नाउ देयर इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री ना, ओके, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल नेशन, बट यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, इसमें मुस्लिम्स वेर द माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स वेर द माइनॉरिटीज। नाउ सर सैयद अहमद खान इज थिंकिंग दैट वंस ब्रिटिश विल लीव इंडिया, तो इंडिया विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियंस, एंड इन इंडिया majority population is the population of Hindus, and in this situation the political rights of Muslims will be affected। ये लग रहा है सर सैयद अहमद खान को। मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज। सो हियर मुस्लिम माइनॉरिटी, व्हाट विल हैपन? द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज विल बी अफेक्टेड। सो सर सैयद अहमद खान रेज द डिमांड, एंड व्हाट वाज दैट डिमांड? ठीक है, वन क्लास वन वोट। मतलब समझ गए? आई एम नॉट सेइंग वन पर्सन वन वोट, आई एम सेइंग व्हाट? वन क्लास वन वोट, ठीक है। जैसे हिंदू क्लास वन वोट, मुस्लिम क्लास वन वोट, जैसे मैं ये कहूं, है ना। सिंपल सा एक एग्जांपल हम ले ले कि जैसे मान लो कोई डिसीजन ले रहा है, और वो डिसीजन क्या है? ठीक है, कि विपिन रावत को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए कि नहीं। मैं बहुत लाइट सा एग्जांपल ले रहा हूं समझने के लिए। तो हिंदूज विल से यस, मुस्लिम्स विल से यस, हिंदूज विल से यस, मुस्लिम्स विल से नो, तो मामला अटक जाएगा ना। यहाँ पे इससे फर्क नहीं होगा कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है और माइनॉरिटी पॉपुलेशन क्या है। वन क्लास विल बी गिवन वन वोट, ठीक है। अच्छा बताओ, इफ यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल, अगर इसको अडॉप्ट कर लोगे, सो इज इट प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन? क्या ये है? नहीं, ठीक है, ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं। मेरी बात समझ गया ना? कैसे हो सकता है? वन पर्सन वन वोट पे चलना चाहिए हमें, और यहाँ क्या कहा जा रहा है? वन क्लास वन वोट। तो सर सैयद अहमद खान ने ये मांग उठाई थी, हालांकि ये अलग बात है कि इस मांग का कोई असर नहीं पड़ा और ये बहुत पॉपुलर डिमांड नहीं थी। मेरी बात समझ गया ना? बट ही started this discourse. He started this discourse in order to secure the political rights of the Muslim minorities. This should be the model once British will leave India. So he started this political discourse, and this political discourse makes Sir Syed Ahmad Khan a communalist in India. मेरी बात समझ गया ना? ये इनको क्या बना देता है? कॉम्युनलिस्ट। इसके पहले ये कॉम्युनलिस्ट नहीं है, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट और जो कुछ भी किया, he is a reformer in that perspective, but with this set of demand, this makes Sir Syed Ahmad Khan a little bit communalist also। मेरी बात समझ गया ना? ये, बट यहाँ पे इसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है, और इसको हम खास काउंट भी नहीं करते, नेशनल मूवमेंट के इवेंट्स में इसको काउंट हम नहीं करते। मेरी बात समझ गया ना? बट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। नाउ व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म, यानी एक बात आप समझ गया कि बिटवीन 1857 से लेकर 1857 में है रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर 1875 में आ जाता है अलीगढ़ मूवमेंट, ये इंडिकेट करता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स को, ठीक है। फिर 1885 में बन जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एंड दिस इज ऑल इंडिया पार्टी, ऑल क्लास पार्टी, ऑल रिलीजन पार्टी, द नेचर इज इंक्लूसिव, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस किस चीज को दिखलाता है? द ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसको दिखलाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। इट्स व्हाट? द फर्स्ट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, इंडियन नेशनल मूवमेंट जब शुरू हुआ इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनिशियली वी नो दैट इन इनिशियल 20 इयर्स 1905 तक, इनिशियल 20 इयर्स, the political goal or objective of Indian National Congress was not clear or vague। मेरी बात समझ गया ना? यहाँ वेग नहीं, वेग है, इट्स नॉट क्लियर। अच्छा, जब आपका पॉलिटिकल गोल ही क्लियर नहीं है, तो आप अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बड़े खतरा होंगे।
मेरी बात समझ गया ना? फर्स्ट फेज में, इनिशियल फेज में आईएनसी का क्या पॉलिटिकल गोल स्वराज का था? नहीं। ठीक है, कहीं ये बात कही नहीं गई। moderate meaning, extremist meaning, nothing was discussed. So political objective is not clear. So INC was not like a threat for the British government. और एक डिस्कशन में पहले बता चुका हूँ, सेफ्टी वॉल्व और एओ ह्यूम और ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। बट क्या होता है कि सेकेंड फेज आते आते यहाँ पे मुद्दा क्या शुरू हो जाता है? 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। दूसरी चीज क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पे moderates were dominating. In this phase, moderates were dominating. Gradually, a class will start putting forward its demand. That is a class of extremist. ये इनका डिमांड क्या है? 3S से रिलेटेड है. This is emotionally charged nationalism and they derive their inspirations from the ancient cultural past. इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? एंशिएंट कल्चरल पास्ट से। मतलब इनको मोटिवेशन चाहिए तो ये तौहीद इलाही नहीं पढ़ते या अशोक का धम्म पढ़ते, रिपब्लिक पढ़ते। मेरी बात समझ गया ना? तो इनका फोकस और ओरिएंटेशन जो था वो कहाँ था? एंशिएंट पास्ट। एंड दे वर कंसीडरिंग द एंशिएंट पास्ट, जैसे कि एंशिएंट इंडिया एज द ग्लोरियस एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनका ज्यादा टाइम एंशिएंट इंडिया पढ़ने में चला जाता था, मिडिवल इंडिया को ये इग्नोर करते थे। और इधर क्या है? ठीक है, मुस्लिम सोसाइटी में जो ग्लोरियस फेज है वो कौन सा फेज है? इनको लगता है सल्तनत पीरियड, ठीक है, मुगल पीरियड। बच्चों का नाम भी रखे जा रहे हैं, अकबर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, इस तरह का चल रहा है, तैमूर वेमूर टाइप का नाम भी रख रहे हैं। तो देखो अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हंसने वाली बात नहीं है। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे आप बस कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 15-20 साल पहले चले जाओ और अपने फादर और ग्रैंडफादर के जनरेशन में चले जाओ, जितने नेम्स आपको मिलेंगे उन सभी नेम्स में गॉड का नाम इंक्लूड ही होगा। ठीक है, अपने अपने फादर का नाम बताओ। जैसे मेरे फादर का नाम है प्रभुनाथ पर्वत, तो प्रभु आ गया ना, गॉड का नाम आ गया ना। और किसी के नाम में है, फादर्स नेम में, यू विल फाइंड सच नेम्स वेर वेरी मच प्रोमिनेंट। ठीक है, मेरी बात समझिए। इस जनरेशन में भी जैसे किसी नाम है इंद्रजीत, आ गया, भगवान वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ। मेरी बात समझ गया ना? तो इस तरह के नाम प्रोमिनेंट है। इसका मतलब रिलीजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंशिएंट इंडिया, इन मिडिवल इंडिया एंड इन दैट फेज आल्सो। रिलीजन का रोल क्या था? बहुत ही प्रोमिनेंट था। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? रिलीजन का रोल प्रोमिनेंट है। और ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? एंशिएंट इंडिया वाली। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रिटर्न टू द पास्ट। और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कौन हो रहा है इससे? है ना, मुस्लिम लोग। ठीक है, चल रहा है ये सब मामला। बट फिर भी व्हाट वी सी दैट देयर इज अ ग्रोइंग यूनिटी बिटवीन इंडियन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज जब किया गया, ओके, अपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जो डिसीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ये रिलीजियस लाइंस के बेसिस पे लिया गया। यू ऑल नो दिस, द डिसीजन वाज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइंस। ठीक है, नाउ दिस डिसीजन वाज रेसिस्टेड बाय बोथ Hindus and Muslims both came forward and opposed this decision. दोनों आया और इस डिसीजन को क्या किया? अपोज किया। कहा कि भाई ये डिसीजन सही नहीं। दिस डिसीजन वाज अपोज्ड बाय बोथ। बट इसके बाद एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दिस मींस व्हाट? हिंदू एंड मुस्लिम आर स्टिल यूनाइटेड। पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन क्यों लिया गया था? टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करने का मतलब था इंडियन नेशनल मूवमेंट को वीक बनाना। Breaking unity of Hindus and Muslims, it means what? Making the Indian national movement weaker. So यहाँ पे तो वो एजेंडा काम नहीं हुआ। कर्जन took this decision but it was Curzonian miscalculation. ये डिसीजन बैकफायर कर गया। यूनिटी तोड़ने की जगह यूनिटी और बढ़ गई और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे अंग्रेज? ठीक है, अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं। ठीक है, दे विल हेल्प, ओके, in the formation of All India Muslim League. नवाब सलीमुल्लाह एंड ऑल दिस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि मुस्लिम लीग बनाई गई 1906 में। 1906 में। एंड व्हाट इज द पर्पस? यहां देखो, ऑल इंडिया, द वर्ड हैज बीन इंक्लूडेड। ऑल इंडिया, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे ये क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इट मींस दिस पार्टी is claiming to be the political representative of Muslims all over India. Muslims
all over India. This party is claiming to be the political representative of Muslims all over India. पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है। ये ऐसा क्लेम करते हैं कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कहना शुरू कर देंगे, हिंदूज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जबकि दिस इज नॉट ट्रू। एंड दे विल स्टार्ट लेबलिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द पार्टी ऑफ हिंदूज। तो यहां पे एक प्रोपेगेंडा था, और वो प्रोपेगेंडा क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर आप हिंदू पार्टी प्रूफ कर देते हो तो ऑटोमेटिक आप प्रूफ हो जाओगे कि आप मुस्लिम पार्टी हो, और पूरे मुस्लिम माइनॉरिटीज को आप रिप्रेजेंट करते हो। तो दिस इज द प्रोपेगेंडा ही दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकरेज किया मुस्लिम लीडर्स को कि योर पॉलिटिकल राइट्स विल बी, कहा देखो भाई नेशनल मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, जोर शोर से चल रहा है, और सोच लो जब तक हम हैं तब तक आपके पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर हैं। जिस दिन हम हिंदुस्तान से गए तो आपका कोई माई बाप नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा। तो क्यों ना अपने लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बना लो, ठीक है, और हम तो यहाँ है ही है, तुम्हें जो जो पॉलिटिकल राइट्स चाहिए हम तुमको दे देंगे। तो इन दिस वे यू विल बी द पार्टी ऑफ द मुस्लिम क्लास। और ऐसा करके अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाह रहे थे। तो पार्टी बनवा दी, फंडिंग भी दिया इसके लिए, ठीक है, ये आइडिया भी दिया मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को। इतना दिमाग कहां से उनके पास आता उस समय उस जमाने में, ठीक है। तो बनवाया भी, पार्टी भी बनवाई, फंडिंग भी दी, और उसके बाद कहा तुम चिल्ला चिल्ला के कहो कि हम मुस्लिम्स की पार्टी हैं और कांग्रेस हिंदू की पार्टी है। और कांग्रेस बहुत अलर्ट थी, कांग्रेस ने बार बार कहा कि नहीं भाई हम ऑल इंक्लूसिव पार्टी। और यही रीजन है कि कांग्रेस ने अपने प्लेटफॉर्म से कभी भी हिंदूज के सोशियो रिलीजियस इश्यूज को रेज नहीं किया। आफ्टर द फॉर्मेशन 1885 में कांग्रेस बनती है, एंड इन 1887 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया गया था ना, बताया था आपको क्लास में, दैट इज कॉल्ड सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस ने कहा देखो भैया जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के मुद्दे अगर हिंदू से जुड़े हुए अगर हम यहाँ से रेज करना शुरू कर दें ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, तो हमें लेबल कर दिया जाएगा हिंदू पार्टी के रूप में। तो इसके लिए हम एक ऑक्सिलरी विंग बनाते हैं, दैट इज सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहां से वो सारे के सारे इश्यूज को हम क्या करेंगे, रेज करेंगे। आप समझ पा रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो कांग्रेस ने हमेशा इस एफर्ट को अपोज किया, एंड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस देयर वर इंपॉर्टेंट लीडर्स, ओके, there were important Muslim leaders. Even Muhammad Ali Jinnah was also in Indian National Congress. ये वही टाइम है 1906 जब उधर मुस्लिम लीग बनती है और मोहम्मद अली जिन्ना कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो याद रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना was a लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है। जैसे इंडिया के लिए गांधी है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, वैसे ही पाकिस्तान के लिए ये है बाबा ए कौम। बाबा ए कौम मतलब फादर ऑफ द नेशन, कौम मीन्स नेशन, बाबा मीन्स फादर, बाबा ए कौम, ही इज बाबा ए कौम ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत तेज तर्रा रहा था, ठीक है, इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेके आया 19 ईयर्स में, मेरी बात समझ गया ना। एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग लॉ इन इंडिया एंड ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन हिज लीगल प्रोफेशन, ठीक है, लीगल प्रोफेशन में भी बहुत सक्सेसफुल। अब इंटेलेक्चुअल्स में इनकी गिनती होती है मोहम्मद अली जिन्ना की, ही वाज काउंटेड अमंग द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स। कांग्रेस ने कहा बुलाओ भाई मोहम्मद अली जिन्ना को, हमारी पार्टी ज्वाइन करो। देन मोहम्मद अली जिन्ना केम एंड ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ही वाज वन ऑफ द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। He was a liberal Muslim, okay, and then Indian National Congress thought that Jinnah will be the poster boy of Muslim leaders in Indian National Congress, ठीक है। पोस्टर बॉय चाहिए ना दिखाने के लिए, जिससे पता लगेगा कि आप हिंदू पार्टी नहीं हो। तो जब भी एडवर्टीजमेंट देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस तो उसमें बगल में मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगा हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना वाज द पोस्टर बॉय, और जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में लीडर्स थे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। मेरी बात समझ गया ना। तो जिन्ना इज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिन्ना एकदम लिबरल है, लिबरल बात करते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, इंडो इस्लामिक सिंथेसिस की बात करते हैं,
शुरुआती दौर में। और मैंने बताया था बहुत पहले आपको कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि रिलीजन इज यूज्ड एज अ टूल बाय द पॉलिटिकल मास्टर्स ऑफ द कंट्री। मेरी बात समझ गया ना? ठीक है, तो रिलीजन एज अ टूल यहां भी यूज होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट वो कैसे होगा समझो। सो दिस पार्टी वाज फॉर्म मुस्लिम लीग, बट ये पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। दिस पार्टी वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल in delivering this message to the Muslim masses that we are the sole representative of Indian Muslims। इस मैसेज को ये बहुत इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। अभी भी इंडियन मुस्लिम्स को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हमारी पार्टी है एंड दिस इज अ ऑल क्लास पार्टी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पे फोटो किसका लग रहा है? जिन्ना का लग रहा है, दूसरे मुस्लिम लीडर्स हैं। मेरी बात समझ गया ना? तो इंडियन मुस्लिम्स को कह रहे ये ऐसे ही है, मुस्लिम लीग है ना, इसको ज्यादा भाव नहीं देना है। मेरी बात समझ गया ना? मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम लीग का ये क्रेज है, तो मुस्लिम लीडर को इज्जत मिल नहीं रही है जो उसे चाहिए। तो अंग्रेजों ने दिमाग दिया, फिर दिमाग देने वाले तो वही लोग थे ना। उन्होंने कहा बेटा तुम अब डिमांड करो, तुम हमसे मांगो, क्या मांगना है? सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने कहा क्या होता है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। अंग्रेजों ने समझाया, कहा सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम मतलब दोज एरियाज विच आर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट इलेक्टोरेट। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में ट्रीट किया जाए। इट मीन्स सारे इलेक्टोरेट्स एक जैसे नहीं होंगे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, यहाँ पे आपको एडिशनल प्रिविलेजेस होंगे, ठीक है, अतिरिक्त सुविधाएं होंगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पॉलिटिकल सीट्स हैं, यहाँ पे सीट्स वो मुस्लिम लीडर्स ही, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ही यहाँ से इलेक्शन जीत पाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो आपके पॉलिटिकल राइट सिक्योर रहेंगे। ठीक है, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम कैंडिडेट है ना, सीट रिजर्व हो जाएगी मुस्लिम लीडर के लिए। तो भाई जो भी चुनाव जीत के आएगा वो मुस्लिम ही होगा ना। तो अगर मुस्लिम ही इस इलाके से चुनाव जीत के आएगा तो इससे आपके पॉलिटिकल राइट्स क्या होंगे? सेफ रहेंगे। मुस्लिम लीग ने कहा बहुत अच्छा, अब हम मांगेंगे ये डिमांड। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग what happened? Muslim League started demanding, and this demand is SES for Muslims, SES for Muslims, separate electorate system for Muslims। ठीक है, एडिशनल जिसको आप कहते हो पॉलिटिकल प्रिविलेजेस, सीट रिजर्व हो जाएगी। जैसे मान लो आपके आपके आपका जो इलेक्ट्रेट है, आप जहां से भी आते हो, अगर वो दलित के लिए सीट रिजर्व हो, है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व हो, तो वहां से इलेक्शन कौन लड़ेगा? शेड्यूल कास्ट का ही रिप्रेजेंटेटिव लड़ेगा, कोई भी हो, बट वहां से जीतेगा कौन? शेड्यूल कास्ट ही। दूसरे लोग वहां से इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। तो इससे तो होगा ना, उनका एम्पावरमेंट तो होगा ही ना। ओके, तो ये कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ। ठीक है, नाउ यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात बाद में आती है, पूना पैक्ट में आती है। मैं एक बात बता रहा था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट मींस ओके मुस्लिम कैंडिडेट, ओके इलेक्टोरल रोल्स, देयर विल नेम ऑफ द मुस्लिम वोटर्स, ऑल दिस। तो इस तरह से एक ये ऑब्जेक्टिव था। नाउ व्हाट हैपेंड, ये मैं आपको क्लास में पहले बता चुका हूँ, डेफिनेशन लिखवा भी चुका हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा। 1909 रिफॉर्म्स विल कम, राइट दिस, रिफॉर्म्स ऑफ 1909। एंड इन these 1909 reforms, okay, British authorities announced that we are ready to give SES for Muslims in India। का हम मुस्लिम्स को SES देने के लिए तैयार है। ठीक है, अच्छा ये SES वाला प्रोविजन वहां इंप्लीमेंट होगा ना जब इलेक्शंस होगा, बताओ। अच्छा इलेक्शन होगा और एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मांगा था SES फॉर द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज अनाउंस दैट वी विल गिव SES फॉर द मुस्लिम्स। बट व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस विल से दैट ओके वी रिजेक्ट इट, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहीं पे मिलेगा मुस्लिम लीग को मौका। अब मुस्लिम लीग घूम घूम के घर घर पे क्या प्रचार करना शुरू करेगी कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये क्लेम करती है कि इंडियन मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट करती है, सो व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट एक्सेप्टिंग द डिमांड फॉर SES फॉर द मुस्लिम्स, दे आर रिजेक्टिंग SES फॉर द मुस्लिम्स। इसका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। मेरी बात समझ गया ना? सो दिस इज व्हाट, दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, this will create a situation of deadlock. Muslim League will say yes to SES, Indian National Congress will say to no to SES, and this deadlock will be continued from 1909 to 1916। 1916 तक ये deadlock चल रहा है। Muslim League is saying yes to SES and Indian National Congress is saying no to SES। इससे एज अ पॉलिटिकल पार्टी किसको नुकसान हो रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। So finally in Lucknow Pact what will happen? Indian National Congress
will temporarily accept the demand for SES for the Muslims. Okay, so as a political party, what Indian National Congress realized that Muslim masses are drifting away from Indian National Congress. Muslim masses are drifting away. वो मुस्लिम वोट जो है वो छिटक रहा है, ऐसे समझो. ठीक है, Muslim masses are drifting away from Indian National Congress. So in 1916 Lucknow Pact, INC temporarily accepted SES for the Muslims. 1916 में temporarily accept कर लिया SES for the Muslims. ठीक है, they temporarily accepted SES for the Muslims, temporarily accept कर लिया. और एक और पॉइंट यहीं पे लिख लो, तब मैं एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिलेट करूंगा 1916 और 1928. यहाँ पे लिख लो टेम्पररी एक्सेप्टेंस टू SES, और यहाँ लिख लो नेहरू रिपोर्ट. ओके, SES फॉर द मुस्लिम्स was rejected. Here SES, separate electorate system for the Muslims, was rejected. SES for the Muslims was rejected. ठीक है. Got it? SES for the Muslims was rejected. अच्छा, इस पीरियड में यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोशिश क्या की कि अपीज कर ले मुस्लिम लीग को, बट ये हो नहीं पाया. ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिगेस्ट मिस्टेक है. अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब दूसरा अपना वेपन यूज करने जा रही है, टूल यूज करने जा रही है. और व्हाट इज दैट सेकंड वेपन? दूसरा टूल क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोस्टर बॉय कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, लिबरल फेस. Now Indian National Congress will ask Mohammad Ali Jinnah to join Muslim League also. ठीक है, कि आप जाओ और मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन जाओ. ठीक है, एंड मोहम्मद अली जिन्ना विल ज्वाइन मुस्लिम लीग ऑल्सो. प्लान क्या था यहाँ पे कि व्हेन जिन्ना विल ज्वाइन मुस्लिम लीग, जिन्ना विल न्यूट्रलाइज द रेडिकल मुस्लिम पॉलिटिक्स ऑफ द मुस्लिम लीग. मतलब जाके कब्जा कर लेना है वहां, यही कहानी है. मुस्लिम लीग में ज्वाइन करो, घुसो, और धीरे धीरे मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे रेडिकल मुस्लिम पॉलिटिक्स को. ठीक है, तो इनका कॉम्युनल एजेंडा ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन बहुत खतरनाक होता है जब आप किसी को किसी की जासूसी करने के लिए भेजते हो और जाके वो उसी का दोस्त बन जाता है. ठीक है, तो खतरा हो जाएगा ना. ठीक है, तो यही होता है. मुस्लिम लीग ज्वाइंस. ओके, मुस्लिम जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग. और देखो, एट द सेम टाइम ही वाज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो, एंड ही वाज द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग आल्सो. ठीक है, और पर्पस क्या था? ओके, तो यू कैन राइट हियर द पर्पस वाज टू न्यूट्रलाइज द कम्युनल पॉलिटिक्स और द रेडिकल पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग. ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द कम्युनल पॉलिटिक्स और रेडिकल पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग, ये पर्पस है. हालांकि जिन्ना वहां जाके अपना काम कर रहे थे. ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये भी आपको पता है. गांधीज एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स 1915, और उसके बाद काकरा, याद ही आपको, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, राउलेट एक्ट एंड असहयोग आंदोलन. बट असहयोग के पहले क्या आता है? खिलाफत मूवमेंट. गांधी was all India Khilafat Committee chairman. Gandhi came in contact with important Muslim leaders, new class of leaders, जो खिलाफत के लीडर्स थे. गांधी सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग खिलाफत मूवमेंट इनटू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और गांधी के पीछे पीछे मुस्लिम लीडर्स, नए चेहरे. ठीक है, और सारे नए चेहरे आके बैठ जाएंगे फ्रंट सीट पे. मोहम्मद अली जिन्ना पिछली सीट पे नाराज हो गए कि हमें चाहिए फुल इज्जत. फुल इज्जत कहाँ मिलेगी बताओ? ठीक है, मुस्लिम लीग में. मतलब आप समझ पा रहे हो. मोहम्मद अली जिन्ना, Gandhi's association with Indian National Congress, when Gandhi becomes the leader of the first great mass movement in India, non-cooperation movement, Jinnah is not happy. Jinnah says that मुझे इनका सत्याग्रह कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या प्रिंसिपल है. I am not able to understand what is his सत्याग्रह, what he is going to do, what he is doing. मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये उलझुल हरकत कर रहा है. गांधी का प्रिंसिपल मुझे नहीं समझ में आ रहा. Basically he is dissatisfied. Why he is dissatisfied? Because now he is thinking that a new person, okay, एक नया आदमी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ता है. और 1920 आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस
एक सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पे दे देती है, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और क्या वही टाइम नहीं था दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज सिनोनिमस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम सिनोनिमस टू गांधी? 1919-20 से 1947 फेज को आप क्या कह देते हो? गांधीयन फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जिन्ना ने कहा मैं कहां गया, ठीक है, गांधीयन फेज, ठीक है। जिन्ना विल डू व्हाट? will resign from Indian National Congress and will become full time member of Muslim League, ठीक है। ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, मेरी बात समझ गया ना। अब यहीं से, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से रेडिकलाइज नहीं हुआ है। अब क्या होता है देखो, 1928 में क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाज रिजेक्टेड। ये नेहरू रिपोर्ट टॉक्ड अबाउट ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात करी ना, ये पता है आपको। इसके बाद 1929 में क्या है? जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला, जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला, जिन्ना लेके आते हैं 14 पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, उस 14 पॉइंट फॉर्मूला में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स है कि नहीं है? बट दिस इज रिजेक्टेड अगेन, दोबारा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा देखो, नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग, इट वाज रिजेक्टेड बाय, ओके, ब्रिटिश अथॉरिटीज, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, लॉर्ड बर्केनहेड आपको पता होगा। In the same way, Jinnah's 14-point formula was rejected by Congress and it was rejected by the British authorities, Lord Birkenhead also. ईगो पे ले लिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, कहा हमारे 14 पॉइंट फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया। उधर वुडरो विल्सन को 19 पेरिस पीस समिट में क्या हुआ था, उसको बेचारे को, मतलब आपने क्या दे दिया, नोबेल पीस प्राइज दे दिया, और हमारा वाला कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कितनी मुश्किल से मैं नाम चुरा के लाया था, 14 पॉइंट फॉर्मूला। ईगो हर्ट हुआ, फिर जिन्ना ने कहा अब मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि जिन्ना क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद जिन्ना का जो रेडिकल फेस होता है ना, वो उभर के सामने आता है। मेरी बात समझ गए? 1928 के बाद द रेडिकल फेस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना विल अपीयर, वेयर ही विल यूज रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल। 1928 के बाद जिन्ना कहते हैं अब वो हम जिन अब हम वो जिन्ना नहीं रहे जो लिवर लिवर करते थे, फुल जलवा है हमारा यहाँ, ठीक है, मुस्लिम लीग में, और अब देखो मेरा कमाल, ठीक है। सो आफ्टर 1920, सॉरी 1929, 1929 राइट दिस रेडिकल फेस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना अपीयर्स, लिख लो। 1929 के बाद वी सी द रेडिकल फेस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना अपीयर्स, रेडिकल फेस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना अपीयर्स, ठीक है। गॉट इट? अब इसके बाद देखो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो इधर चल रहा है सारा का सारा मामला पैरेलल। अब एक दूसरी कहानी में भी एंटर करते हैं, पैरेलल सारे डेवलपमेंट्स हैं। क्या है? 1905 से लेकर, ठीक है, 1919-20, दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और नॉट, है ना? ये याद आ रहा है ना, सब पहले बताया, इसलिए मैं लास्ट में इस टॉपिक को कर रहा हूं, क्योंकि ये जब तक आप पूरे मेन फ्रेम को समझोगे नहीं, इस टॉपिक में मजा नहीं आएगा। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। और ये क्या था? फेज ऑफ मॉडरेट डोमिनियन था कि एक्सट्रीमिस्ट डोमिनियन था? बताओ। फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट डोमिनियन। अच्छा, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में से लीडर्स, मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, दे वर गेटिंग सोर्स एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट कल्चरल पास्ट, ठीक है, एंशिएंट पर्सनालिटीज प्लस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, इनसे ये मोटिवेशन ले रहे थे। यानी इनका कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का कहाँ था? तो ग्लोरियस पास्ट वाले एंगल पे था। और ये ग्लोरियस पास्ट को किससे रिलेट करके देखते? एंशिएंट इंडिया के साथ रिलेट करके देखते, ठीक है ना। वो ग्लोरियस पास्ट वाला इनका जो ओपिनियन है, मेरी बात समझ गया, ग्लोरियस पास्ट और एंशिएंट पास्ट। नाउ व्हाट वी सी हियर, ठीक है, ग्लोरियस पास्ट और एंशिएंट पास्ट। अब इस ग्लोरियस पास्ट और एंशिएंट पास्ट की तरफ जाते, ठीक है, तो हिंदू रूलर्स थे कि नहीं? बताओ, हिंदू रूलर्स। अब इनको साफ साफ दिखने लगेगा, क्या दिखने लगेगा? एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, परमानेंट एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, दिल्ली सल्तनत पीरियड दिखेगा इनको 1206 टू 1526, मुगल पीरियड 1526, 1707 ऑनवर्ड्स, 1857-58। का ये लोग कहाँ से आए हैं? बाहर से।
मेरी बात समझ गया? आउटसाइडर्स केम टू इंडिया, और इंडिया में आके ये कर क्या रहे हैं? ठीक है, अगर आप इंडो इस्लामिक कल्चर की बात करते हो, ठीक है, मल्टी कल्चरलिज्म की बात करते हो, तो समझ में आता है। अब इनका ये क्या क्या कहना है कि इन्होंने, मुस्लिम्स ने क्या करी, अपनी एक अलग पार्टी बना ली, मुस्लिम लीग। कहा हमने तो अभी पार्टी बनाई नहीं, पार्टी आपने बना ली 1906 में, तो सिक्योर द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। पार्टी ही नहीं बनाई, आपने क्या डिमांड किया? एस फॉर द मुस्लिम्स की, जहां हम, हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, उसको क्या बना दो, सेपरेट इलेक्ट्रेट बना दो। तो इन लीडर्स ने कहना शुरू किया कि कल को कहोगे सेपरेट नेशन बना बना दो। आज आप कह रहे हो सेपरेट इलेक्ट्रेट बना दो, कल को क्या कह दोगे कि सेपरेट नेशन बना दो। अब बताओ ये चीजें डिस्कोर्स में होंगी कि नहीं? डिस्कोर्स में होंगी ना। वाई सेपरेट इलेक्ट्रेट, वाई यू शुड बी ट्रीटेड इन सच अ प्रिविलेज्ड मैनर, ठीक है, व्हेन ऑल आर इक्वल्स, सब इक्वल है, तो आपको इतनी प्रिविलेजेस क्यों चाहिए? गॉट इट? तीसरी चीज क्या है, ठीक है, द ओरिएंटेशन आफ्टर सर सैयद अहमद खान। क्या ओरिएंटेशन है? कि मुस्लिम्स विल बी द लॉयल सपोर्टर ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। इससे भी इनको प्रॉब्लम है। कहा दे आर द लॉयल सपोर्टर्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, और यहाँ पे हम लड़ रहे हैं अंग्रेजों से। ठीक है, ये कैसे चलेगा भाई? ओके, यू वांट एडिशनल प्रिविलेजेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग दीज प्रिविलेजेस। सो व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द हिंदूज? हिंदूज के पॉलिटिकल राइट्स का क्या रिएक्शन होगा कि नहीं? टेल मी, यस और नो? रिएक्शन होगा ना। फाइनली वी सी हिंदू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कहा कहा कांग्रेस तो, वो तो कसम खा ली है कि वो हिंदू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, वो ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस यहाँ पे क्या, मुस्लिम्स के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हिंदूज के लिए भी होनी चाहिए। तो देखो आ गया, हिंदूज के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। ठीक है, ईयर इज 1915, ईयर वॉज 1915, ईयर क्या है 1915, हिंदू महासभा। ठीक है, राइट, पॉलिटिकल एसोसिएशन और द ग्रुप ऑफ, पॉलिटिकल एसोसिएशन और द ग्रुप ऑफ, ओके, हिंदूज। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि वी वांट टू सिक्योर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ हिंदूज। और हिंदूज के पॉलिटिकल राइट्स कैसे सिक्योर रहेंगे? जब मुस्लिम माइनॉरिटीज ये जो स्पेशल डिमांड कर रही है, पार्टिकुलर डिमांड कर रही है कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम चाहिए, है ना, अगर इस डिमांड को रिजेक्ट किया जाए, तभी मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट सिक्योर रहेंगे। मेरी बात समझ गया ना? दिस इज द आइडिया दैट दे विल से व्हाट, दैट रिजेक्ट द स्पेशल डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, रिजेक्ट एसईएस फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए एसईएस को क्या करो, रिजेक्ट करो। ठीक है, 1915 में आती है हिंदू महासभा। गॉट इट? ओके, राइट दिस, कलकत्ता, इट वाज established in कलकत्ता, established in कलकत्ता। समझ में आया आपको? हिंदू महासभा 1915 में, हिंदू महासभा। और 1916 में क्या है? लखनऊ पैक्ट, INC and Muslim League, pact between INC and Muslim League, and INC said what? Temporary acceptance to SES for the Muslims। अब बताओ हिंदू महासभा का वॉइस और रेडिकल हो जाएगा कि नहीं? जैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेप लेगी, ये पार्टी क्या कह रही है कि रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ एसईएस फॉर द मुस्लिम्स। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर, राइट दिस, 1916 लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट ये भी है, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों साथ आ रही हैं, और यहां पे आईएनसी कह रही है टेम्पररी एक्सेप्टेंस टू द, टेम्पररी एक्सेप्टेंस फॉर एसईएस फॉर द मुस्लिम्स, एसईएस फॉर द मुस्लिम्स। अब आप ये बताओ कि आफ्टर दिस the Hindu Mahasabha will become more radical in its thought or opinion or not? Yes or no? Yes. So this Hindu Mahasabha, right, the founder was Madan Mohan Malviya. Madan Mohan Malviya, he was the founder of this Hindu Mahasabha. Sorry, 1915, 1915 Hindu Mahasabha, Madan Mohan Malviya। ठीक है, 1930s में इस पार्टी को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था वीडी सावरकर, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, वीडी सावरकर एंड ऑल दिस। ठीक है ना? तो ये बात आप समझ गया?
ठीक है, कि ये पार्टी आ जाती है 1915 में, ठीक है, दिस इज वन पार्ट। एक और पार्टी आएगी, राइट, ओके, दैट इज आरएसएस, 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 ठीक है। राइट, ईयर 1925, founded by KB Hedgewar, 1925, it was founded by केशव बलराम हेडेगवार, ठीक है, केशव बलराम हेडेगवार, ठीक है। तिलक भी इससे जुड़े थे, बाल गंगाधर तिलक, एंड तिलक वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है, तिलक वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अब आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो 1925 ईयर, ठीक है। 1916 से लेकर 1928, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? टेम्पररी एक्सेप्टेंस टू डिमांड फॉर SES फॉर मुस्लिम्स। इनका कहना क्या था शुरू से, हिंदू महासभा एंड RSS, रिजेक्शन टू द डिमांड ऑफ SES, ठीक है। और फिर 1925 के बाद RSS विल आल्सो ओके प्रोमोट इट्स एजेंडा, हिंदू महासभा ऑलरेडी है। और फिर हम क्या देखते हैं कि आफ्टर 3 इयर्स INC ऑफिशियली क्या करती है, नेहरू रिपोर्ट में SES फॉर द मुस्लिम्स, इसके डिमांड को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि हाँ, मेनी मेनी सॉरी 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 नॉट तिलक, है ना, वो हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है ना, मतलब मेनी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर एसोसिएटेड विद हिंदू महासभा एंड RSS, ठीक है ना, वो जुड़े हुए। जैसे आपको VD सावरकर के बारे में बताऊंगा, तो VD सावरकर वाज अ रिवॉल्यूशनरी, और रिवॉल्यूशनरी क्या है, एक्सट्रीमिज्म का ही तो एक रूप है ना, मेरी बात समझ गया ना, ये चीजें हैं, तो इनसे सबको जोड़ के आपको देखना है, ठीक है ना, ये चीज है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दे मेनी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स सपोर्टेड दिस राइट विंग, ठीक है, इस राइट विंग को वो सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट इस फेज में चल रहा है, यानी कि दो पैरेलल स्ट्रीम्स यहाँ काम कर रही है। एक पैरेलल स्ट्रीम जो काम कर रही है वो क्या है, तो वो है जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ हिंदू महासभा, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा RSS, ठीक है, ऐसे और भी है, डिप्रेस क्लास के लिए है, सिख के लिए है। मैंने कहा ना कि वेरियस कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वर वर्किंग, so that now there are various caste and religion based organizations are working, and on the other side Indian National Congress, ठीक है, is claiming कि हम क्या कर रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड वी आर एन ऑल इंक्लूसिव पार्टी, हम पूरी तरह से क्या है, ऑल इंक्लूसिव पार्टी है, ये डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सेकेंड विंग है इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे सेपरेटली। हाँ विपिन, आस्क योर क्वेश्चन। वही है, ठीक है ना। इस पे अभी हम बात करेंगे, अलग से बात करेंगे, हिंदू महासभा RSS और जो इनकी पॉलिटिक्स है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, उसको अलग से करेंगे। थोड़ा मेन स्ट्रीम में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को और यहाँ पे हम रिलेट करते हैं कि आगे क्या होता है। तो देखो 1928-29 के बाद कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट होता है, बताओ। 1928-29 के बाद क्या होगा, 1928-29 के बाद वी ऑल नो क्या होता है यहाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो मुस्लिम गवर्नमेंट का, सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओपिनियन है वो किस चीज को लेके है, कि हम जो माइनॉरिटी राइट्स हैं इसको प्रोटेक्ट करेंगे हर हाल में। दिस इज द ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, कि चाहे वो SES फॉर द मुस्लिम्स हो, वे विल आल्सो गिव SES फॉर द दलित कम्युनिटी। ये भी वो कहते हैं दिस इज अ फर्दर अटेम्प्ट टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल, ये इंडियन लोगों की यूनिटी को तोड़ने की दूसरी साजिश है, ठीक है, कि हम इसको ब्रेक करेंगे, दलित्स को। तो फिर यहाँ पे दो टॉपिक है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक है कॉमनवेल्थ अवार्ड और दूसरा क्या है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में अंबेडकर इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि हमें SES नहीं चाहिए दलित्स के लिए, एंड बेटर हम किस चीज को लेके चलेंगे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम को और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इन सबसे रिलेटेड है पूना पैक्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बात हुई, फिर और आगे बढ़ जाओ, क्या होता है 1937 इलेक्शंस, 1937 इलेक्शंस, ये 1935 का एक्ट है, और फिर क्या 1937 इलेक्शंस। इलेक्शंस में क्या होता है बताओ,
मुस्लिम लीग परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमनल पार्टीज लाइक मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इन सब का परफॉर्मेंस पुअर था. सो राइट दिस. ओके, 1937 इलेक्शंस, राइट. द कॉमनल पार्टीज had poor performance. इनका poor performance था. And this is a challenge for the Hindu communal parties also and Muslim communal parties also. दोनों के लिए challenge है. ठीक है. प्लस ये ब्रिटिश पॉलिसी के लिए भी एक चैलेंज थी. बिकॉज ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी कि जितना ज्यादा कॉम्युनल पॉलिटिक्स प्रमोट होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या होगा, वीक होगा. बट 1937 इलेक्शंस, ओके, वर लाइक अ टर्निंग पॉइंट. लीग को 1937 इलेक्शंस में मुस्लिम्स के लिए जो रिजर्व सीट्स थी, जो वन टोटल 492 थी, उनमें से केवल 109 सीट्स मिली थी. मेरी बात समझ गया ना. जो ये बात दिखला रहा था कि मुस्लिम लीग का ये जो क्लेम है दैट वी आर द पार्टी ऑफ ऑल मुस्लिम्स इन इंडिया, दिस क्लेम इज फॉल्स. आप समझ पा रहे हो कि आपको सीट्स इतनी मिल रही हैं, ठीक है, रिजर्व सीट्स भी आप पूरी जीत नहीं पा रहे हो. इसका मतलब कि योर क्लेम दैट वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इज नॉट ट्रू. ठीक है. इसका मतलब अब जब मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी के आइडेंटिटी पे खतरा नजर आया, इसलिए मैंने कहा यूज ऑफ रिलीजन एज अ टूल इन पॉलिटिक्स विल स्टार्ट आफ्टर 1937 इलेक्शंस. 1937 के इलेक्शंस के बाद, आफ्टर 1937 इलेक्शंस, ठीक है, यूज ऑफ रिलीजन एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स विल स्टार्ट. यूज ऑफ रिलीजन एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स विल स्टार्ट. कैसे? नाउ मुस्लिम लीग इज इन डेंजर. खतरे में कौन है? मुस्लिम लीग है. ठीक है. तो व्हेन मुस्लिम लीग इज इन डेंजर, मुस्लिम लीग विल स्टार्ट क्राइंग दैट इस्लाम इज इन डेंजर. मेरी बात समझ गया ना. खतरे में धर्म नहीं होता है, खतरे में कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टी. तो मुस्लिम लीग खतरे में, और मुस्लिम लीग क्या कह रही है? इस्लाम खतरे में. और इस्लाम को खतरा किससे है? हिंदू राज से. अरे भैया, अभी भारत आजाद ही नहीं हुआ. मेरी बात समझ गया ना. वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड मुस्लिम लीग इज क्राइंग दैट इस्लाम इज डेंजर एंड ओके देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम हिंदू राज. हिंदू राज से खतरा है. इस चीज को, है ना, वो प्रमोट करने लगे. यानी विच काइंड ऑफ पॉलिटिक्स नाउ मुस्लिम लीग इज प्रोमोटिंग? मुस्लिम लीग इज प्रोमोटिंग अ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ फियर एंड हैट्रेड. ठीक है. कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ डिसबिलीफ, अविश्वास, डर, भय ये बने. और जब ये बनेगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा इलेक्शन में. ठीक है ना. मेरी बात समझ गया ना. एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को शक की निगाह से देखने लगे, और यार कहीं ये लव जिहाद करने तो नहीं आया है, मुझसे बात कर रहा है तो. ठीक है. और जब इस तरह की चीज बनेगी तो इसका फाइनली फायदा किसको मिलता है? पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है. ये आपको समझना होगा कि इस्लाम इज इन डेंजर एंड थ्रेट फ्रॉम हिंदू राज. इट मींस मुस्लिम लीग नाउ वांट्स टू गेट इट्स पॉलिटिकल माइलेज और एडवांटेज. बट इसके बाद फिर से सिचुएशंस कुछ बदलती हैं. यू ऑल नो दिस. 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट्स. ठीक है. एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन. और जैसे ही कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है तो मुस्लिम लीग क्या कहती है कि आज क्या है? डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस है, हमें कांग्रेस से छुटकारा मिल गया. पार्टी होगी आज, कांग्रेस से छुटकारा मिल गया. आप बताओ, सबको मिलके आजादी की लड़ाई लड़नी थी और मुस्लिम लीग क्या कह रही है? आज क्या है? डे ऑफ डिलीवरेंस. द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वाज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ डिलीवरेंस बाय द मुस्लिम लीग. ठीक है. इसके बाद क्या होता है? अगली कहानी. ठीक है. मार्च 1940 was the year when Muslim League passed लाहौर रेजोल्यूशन. मुस्लिम लीग ने क्या किया? लाहौर प्रस्ताव पास किया, लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, मार्च 1940. And here Muslim League demanded, okay, for a separate nation, a sovereign state for the Muslims. Here Muslim League demanded for a sovereign state for of Muslims. Sovereign state for Muslims. वो मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट मांग रहे हैं, सॉवरेन स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, अलग नेशन मांग. अच्छा, इस समय जो हिंदू कम्युनल पार्टीज हैं उनका क्या अप्रोच होगा? कहेंगे भाई मामला ये सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम से बढ़ते बढ़ते कहां आ गया है? सेपरेट नेशन पे आ गया है. तो नाउ वी विल हैव टू प्रिजर्व द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया. देश का बंटवारा,
का ये तो नहीं होने देंगे। पॉलिटिकल यूनिटी, हिंदुस्तान को यूनाइटेड बनाए रखना है, इंडिया को यूनाइटेड बनाए रखना है। ये भाई एक माइनॉरिटी ग्रुप है जो बाहर से आई और दैट माइनॉरिटी ग्रुप सेइंग दैट अब ये हमारा है और हमें अलग करो, ठीक है, सेपरेट नेशन पाकिस्तान। अब दूसरी तरफ जो हिंदू कम्युनल ग्रुप्स हैं वो क्या कहना शुरू करेंगे, टू मेंटेन द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी बनाए रखनी है, नो सेपरेट नेशन पाकिस्तान। और दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे वो, कि वी वांट अ हिंदू नेशन। मेरी बात समझ गया ना? when you are talking about a Muslim nation, they will say what? We want a Hindu nation, हिंदुस्तान, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। हम पार्टीशन को हर कीमत पर रोकेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सेंटिमेंट्स, मतलब आप अनुमान लगा सकते हो, हिस्ट्री में लिखा गया है नहीं लिखा गया। मेरी बात समझो, अगर यहाँ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स की बात उठेगी तो एक ग्रुप ऐसा होगा जो जरूर कहेगा, ठीक है, कि वी वांट इंडिया टू बी अ हिंदू स्टेट और अ हिंदू नेशन, कहेगा ना? बताओ, क्योंकि ये पब्लिक डिस्कोर्स की चीजें, ऐसी चीजें होंगी। नाउ व्हाट हैपेंस, ओके, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, एंड इन दिस पाकिस्तान रिजोल्यूशन लिख लिया ना, सॉवरेन स्टेट ऑफ, और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना सेज व्हाट, मोहम्मद अली जिन्ना सेज दैट हिंदू एंड मुस्लिम दे आर नॉट ओनली टू रिलीजियस कम्युनिटीज। इनको आप दो रिलीजियस कम्युनिटीज समझने की भूल मत करो, दीज आर टू डिफरेंट कल्चर्स, ये दो अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ दीज टू कल्चर्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, दोनों के कल्चरल इंटरेस्ट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट में होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जो हैव्स और हैव नॉट्स है, हमेशा क्या होता है, तो वही चीज है, ही इज सेइंग दैट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी, ओके, each and everything is contradictory in nature, the conflicts are there, okay, and these conflicts are contradictory। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोनों एक साथ मिल के कभी रह ही नहीं सकते, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ओके, देयर cohabitation is not possible, it's near an impossible thing। These two are two different cultures, they cannot coexist together in India, and for that reason we need a sovereign state, separate sovereign state, and that is what, Pakistan। तो उन्होंने जो, अब आज हम जैसे क्या पढ़ते हैं, आज हम इंडो इस्लामिक कल्चर पढ़ते हैं, मतलब उसने क्या किया जिन्ना ने, जो जो इंडो इस्लामिक कल्चर और ये कल्चरल इंटरेक्शन, ये सबको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, सीधा सीधा कहा कि दो अलग अलग कल्चर्स हैं, दोनों कल्चर्स एक साथ नहीं रह सकती, एंड ऑन दैट बेसिस ही गेव अ टू नेशन थियरी। यहाँ पे दे दिया टू नेशन थियरी, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान, ठीक है, टू नेशन थियरी। तो 1940 में टू नेशन थियरी। अच्छा, टू नेशन जो थियरी है, ये बताओ पहले से ज्यादा रेडिकल हो गया कि नहीं डिमांड? यस, इट्स मोर रेडिकल देन बिफोर, ये टू नेशन थ्योरी। इसके बाद शुरू हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 के बाद, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 टू 1944-45, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट हैज गॉट ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और नॉट? यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट था यहाँ। अच्छा, जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ आईएनसी के सारे लीडर्स क्या हो गए, अरेस्ट हो गए, ये आपको पता है, दे ऑल वर पुट टू जेल, सबको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। सो दिस मूवमेंट वाज व्हाट, सेल्फ स्पॉन्टेनियस, ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस भी था, है ना, क्योंकि लोगों ने खुद ही अपना लीडरशिप किया। लिमिटेड वायलेंसेस वर आल्सो यूज्ड, बट द कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल, सारे के सारे कांग्रेस नेता कहाँ थे, जेल में। मुस्लिम लीग सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉट? द आंसर इज नो। तो जब वो सपोर्ट ही नहीं किए थे तो उनके नेता जेल में जाएंगे कि जेल से बाहर रहेंगे? जेल से बाहर रहेंगे। अब देखो क्या था, पहले क्या था, पहले मुस्लिम लीग के नेता भी जेल से बाहर थे, कांग्रेस वाले भी बाहर थे। मान लो तुम्हारे घर मुस्लिम लीग के नेता है, तुमको समझा बुझा के गए, ठीक है, कि टू नेशन, थोड़ी देर बाद कांग्रेस के लीडर आएंगे, वो समझाएंगे अरे सब बकवास है, ऐसे ही पागल हो गए, वो उनकी बात का सीरियसली नहीं लेना है, हम भाई भाई हैं, साथ साथ रहेंगे। तो मुस्लिम लीग यूज टू प्रमोट कॉम्युनल एजेंडा, बट कांग्रेस लीडर्स यूज टू न्यूट्रलाइज दैट, उसको न्यूट्रलाइज कर देते थे। अभी क्या सीन है, कांग्रेस के सारे नेता जेल में, और मुस्लिम लीग ने कॉम्युनल पॉलिटिक्स का इंजेक्शन घर घर घूम के, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन लगता है वैसे लगाना शुरू किया मुस्लिम फैमिलीज, ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आईएनसी के लीडर्स थे नहीं, दे वर इन जेल। तो मुस्लिम लीग गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी to promote its radical campaign, radical orthodox campaign among the Muslim masses that we are the sole representative of Muslims, Islam is in danger। ये सब बढ़िया से 2-3 साल कांग्रेस के नेता जेल में रहे, और मुस्लिम लीग जैसे पोलियो का इंजेक्शन लगता है
वैसे ही कॉम्युनल इंजेक्शन घर में घूम घूम के कॉम्युनल इंजेक्शन लगाए मुस्लिम लीग ने। कुछ तो असर करेगा ना ये वैक्सीनेशन, असर किया। और ये असर कहाँ देखने को मिलता है? 1946 इलेक्शंस में। एंड इन 1946 इलेक्शंस मुस्लिम लीग परफॉर्म बेटर। इट मींस व्हाट? मुस्लिम लीग का जो कॉम्युनल एजेंडा है वो क्या हो चुका है? इट्स कॉम्युनल एजेंडा हैज बिकम सक्सेसफुल। इसका कॉम्युनल एजेंडा सक्सेसफुल हो चुका है 1946। ठीक है, मुस्लिम लीग कॉम्युनल एजेंडा हैज बिकम सक्सेसफुल। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, ये भी आपको पता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन क्या करता है? रिजेक्ट्स द डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। कैबिनेट मिशन ने तो रिजेक्ट कर दिया, कहा भाई पाकिस्तान नहीं देना। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या करेगी? हाँ, मुस्लिम मुस्लिम ने कहा ब्लू प्रिंट विंट नहीं चाहिए हमें, हमें सीधा पाकिस्तान चाहिए। ब्लू प्रिंट क्या चीज होती है? ठीक है, देन मुस्लिम लीग विल डू व्हाट? दे विल सेलिब्रेट, आपको पता है ना 16 अगस्त 1946 क्लास में बताया था, डायरेक्ट एक्शन डे। और डायरेक्ट एक्शन डे में क्या कह रहे हैं? लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे मना डाला। अब इससे तो कॉम्युनल वायलेंसेस की शुरुआत कर दी मुस्लिम लीग ने। मेरी बात समझ गए? अच्छा, कॉम्युनल वायलेंस अगर होंगे तो एवरी एक्शन एज अ काउंटर रिएक्शन। ठीक है, तो हिंदूज विल आल्सो लॉस देयर लाइफ, मुस्लिम्स विल आल्सो लॉस देयर लाइफ। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ही कॉम्युनल राइट चल रहे थे। ठीक है, और कॉम्युनल राइट चल ही रहे थे, फिर माउंटबेटन आता है। ठीक है, और माउंटबेटन प्लान अनाउंस कर देता है। और माउंटबेटन प्लान में वो क्या कह देता है? कहता है भाई देखो, इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट डोमिनियन बनेगा, और अंग्रेज 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है, 15 अगस्त को मतलब इंडिया विल बी गिवन फ्रीडम। ओके, एंड आफ्टर दिस द ब्रिटिश विल लीव इंडिया। अच्छा, ये मैसेज तो आपको पहुंच गया, बट ओके, टेरिटोरियल डिविजन्स विच पार्ट कम्स, ठीक है, टू इंडिया, विच पार्ट कम्स टू पाकिस्तान, ये क्लियर नहीं हो पाया। बेसिकली माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन 3 जून, तो इसको हम क्या कहते हैं? 3 जून प्लान, माउंटबेटन प्लान, जिसने क्लियर कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियंस बनेंगे। और फिर क्या होता है? 15 अगस्त 1947। तो इन दोनों डेट्स के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 72 डेज, दैट इज 72 डेज टाइमलाइन। और इन 72 डेज टाइमलाइन में क्या होगा? र्यूमर होगा, द पीपल आर नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड। अरे भाई, इन्फॉर्म्ड रहोगे तब तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, देयर विल बी र्यूमर्स, आप घर में बैठे और ये एरिया तो पाकिस्तान में चला गया, फिर कहीं से कुछ हंगामा होगा, ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी। एंड इन दीज 72 डेज, ओके, you can say, see, hundreds of communal violences, thousands and lakhs of people will lost their life। तो पूरी आजादी की लड़ाई जो अहिंसक तरीके से चली, लास्ट में ऐसा हिंसा हुआ, ठीक है, कि सब बराबर कर दिया कॉम्युनल वायलेंसेस, है ना। पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, इवन वुमेन, चिल्ड्रन। ओके, वो ब्रुटैलिटी जो है पार्टीशन का, वो एक पूरा का पूरा, उस पर एक बड़ी बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बुक है मेरे पास, तो मैं सोचता हूँ कि कभी टाइम मिले तो उसको मैं रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, तो दिस विल हैपन इन 72 डेज टाइमलाइन। तो यहाँ पे तो गलती किसकी है? ब्रिटिश की भी है। दे आर इन सो मच हरी टू लीव इंडिया। प्लान क्या था कि जून 1948 तक जाएंगे, बट पहले ही छोड़ के चले गए। ठीक है, सो व्हेन वी से दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस? ठीक है, तो अभी तो जैसा माहौल है उसको देख के क्या लगता है कि यही रिस्पांसिबल है पार्टीशन के लिए। तो थोड़ा भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। ठीक है, और याद रखना है कि फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, व्हाट इज रिस्पांसिबल? पहला फैक्टर, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये रिस्पांसिबल है। मेरी बात समझ गया ना? पहली रिस्पांसिबिलिटी हमें किसको देनी है? यही तो है, कान में मंत्र फूकने वाले तो यही है ना। तो ब्रिटिश पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसके कंधे पे डालेंगे? मुस्लिम लीग। ठीक है, एंड द कॉम्युनल पॉलिटिक्स प्रोमोटेड बाय मुस्लिम लीग। पूरे नेशनल मूवमेंट में मैंने आपको बताया कि कितने बार ऐसा मौका आया कि मुस्लिम लीग अपने कॉम्युनल एजेंडा से पीछे हट सकती थी, बट मुस्लिम लीग ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग को पीछे से बैक और सपोर्ट कौन कर रहा था? ब्रिटिश अथॉरिटीज, ताकि हमारा नेशनल मूवमेंट कमजोर हो जाए। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद हम आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है,
क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? थोड़ी बहुत है ना। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिकॉज यू क्लेम टू बी ऑल इंडिया पार्टी, आप दावा करते हो ऑल इंडिया पार्टी हो, बट आप मुस्लिम मासेस को ये कन्विंस नहीं कर पाए कि यू आर द पार्टी ऑफ मुस्लिम्स। कैसे मुस्लिम लीग कन्विंस कर लेगी? पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स वाला काम करो, ये आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुस्लिम मासेस को कन्विंस करना, या जो मुस्लिम कॉम्युनल पॉलिटिक्स है इसको रेडिकलाइज करना किसकी ड्यूटी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही तो ड्यूटी थी ना, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना है। ओके, राइट दिस मुस्लिम लीग सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेलियर कहाँ है? राइट दिस, इट फेल्ड टू न्यूट्रलाइज, इट फेल्ड टू न्यूट्रलाइज द कॉम्युनल पॉलिटिक्स, इट फेल्ड टू न्यूट्रलाइज द कॉम्युनल पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, यानी कि कांग्रेस का फेलियर है कि जो मुस्लिम मासेस हैं इनको नेशनलिस्ट मेन स्ट्रीम में आप नहीं लेके आ पाए। मेरी बात समझ गया ना? ये आपकी फेलियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है इसका भी थोड़ा बहुत रोल है कि नहीं? पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट कहां दिखता है? पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट 1916 में दिखता है। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट 16 से 18 में क्या है? टेम्पररी एक्सेप्टेंस ऑफ एसईएस। इसको मैंने कहा था ना कि दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, ओके, कमिटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये चीजें हैं। गॉट इट? ये है कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर कॉम्युनल पार्टीज की नहीं है? यस और नो? लाइक हिंदू कॉम्युनल पार्टीज, क्या इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्युनलिज्म के लिए? यस, दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर मुस्लिम लीग इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ द मुस्लिम्स, ओके, तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट आपकी काउंटर पॉलिटिक्स स्टोरी अलग तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर इम्फेसिस ऑन इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ठीक है, और ये क्लेम करना कि भाई हिंदुस्तान में रहने वाले वही लोग मतलब हिंदुस्तान के असली निवासी हैं जिनके जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो इंडिया में हो। अब मुस्लिम्स का कहाँ है? मक्का मदीना में। मेरी बात समझ गए? आपने क्या कहा कि तुम ढूंढो, तुम्हारा अगर ओरिजिनल रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप यहाँ है तभी तुम हो। तो जब ये कॉन्सेप्ट ऐड होगा, आगे चल के ऐड होगा, देयर वाज अ टाइम, जब आपको हिंदू कम्युनल पार्टीज बताऊंगा तो वहां समझोगे। तो इसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा कि 1937 इलेक्शंस के बाद 1940s और 47 के बीच में, बिटवीन दीज 6 to 7 years, ओके, why Muslim radical politics or orthodox, sorry, communal politics became popular? Because in 1937 elections, the other religious parties also did not perform well. हिंदू महासभा का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। मेरी बात समझ गया ना? तो जितना परफॉर्मेंस पुअर मुस्लिम लीग का था उसी रेशियो में परफॉर्मेंस पुअर किसका था? हिंदू महासभा वगैरह का भी था। तो इन लोगों को अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए क्या करना था? कुछ पॉपुलर एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करने थे, वो किया जिसका थोड़ा सा नुकसान हुआ। ओके, सो वी कैन से दैट द मेन विलन हियर इज ब्रिटिश पॉलिसी, देन मुस्लिम लीग, बिकॉज मुस्लिम लीग ने कभी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश ही नहीं, was never ready to leave its communal politics. And the question is, when partition took place in 1947, when India and Pakistan two dominions came to picture, the question is why Congress accepted partition? कांग्रेस ने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? तो आप सबको पता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पहले भी तो कोशिश हुए, देसाई लियाकत टॉक्स, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, याद ही आपको? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, ये सब क्या था? आपको ऑप्शंस दिए गए मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग ने किसी ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? तो अब कोई चारा नहीं रह गया था, बिकॉज ब्रिटिश क्या कह रहे थे? ब्रिटिश कह रहे थे कि हम किसको फ्रीडम दे, किसको आजादी दे, हम माइनॉरिटी ओपिनियन के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करते तो दो चीजें होती, या तो डिले होता, दूसरा इस बात की भी पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया दो टुकड़ों की जगह कई और टुकड़ों में बढ़ जाता। तो वो टाइम आ गया था कि हम इस चीज को और डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या केवल इलेक्शंस में अब फाइट कर रही थी? गलियों में कॉम्युनल राइट्स को भी प्रमोट कर रही थी, कॉम्युनल राइट्स को भी प्रमोट कर रही थी। कॉम्युनल वायलेंसेस वेर ग्रोइंग, तो कांग्रेस को लगा कि शायद कॉम्युनल वायलेंसेस को
रोकने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आपको स्लोगन पता है, लड़कर लेंगे पाकिस्तान और लेकर रहेंगे पाकिस्तान। अच्छा, आपको ये भी पता है कि 1946 कैबिनेट मिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। मुस्लिम लीग ने बाद में इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, और किस पर्पज से ज्वाइन किया कि हमें क्या करना है, इसमें घुस के क्या करना है, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म के पॉलिसी को फॉलो करना है। इसका मतलब अगर इनको साथ लेके हम सरकार चला रहे हैं, तो सरकार चलाने में भी कोऑपरेशन की जगह ये क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऐसी पार्टी को हम साथ लेके कैसे चल सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इंटरिम गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया था, ठीक है। प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दूसरे ऑप्शंस थे, प्लान बाल्कनाइजेशन, जिसमें हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बट जाता। अगर उससे आपको बचाना था तो फिर आपको क्या करना था, कांग्रेस को, पार्टीशन को एक्सेप्ट करना था। ये चीज है। गांधी थोड़ा अलग मूड में रहते। गांधी ने कहा ठीक है, भारी मन से मैं पार्टीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूं, ओके, बट आई होप दैट वेरी सून हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल रियलाइज देयर मिस्टेक एंड इंडिया एंड पाकिस्तान विल अगेन बी रीयूनाइटेड। लोगों ने कहा भाई, आप जितने महान हैं उतने दूसरे लोग महान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा फिर लोग नहीं चलो मिल जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो गांधी को ये लग रहा था कि कुछ टाइम बाद चीजें नॉर्मलाइज होंगी, है ना, और फिर क्या होगा कि, है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देश के लोग आएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो गांधी कुछ इस मोड में थे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट्स चल रहे थे। अब आप समझ पाए, इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया, तो आप 150 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 250 में भी लिख सकते हो। गॉट इट। तो पहली बात आप क्या करोगे, लिखोगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन द रोल, बट ओके, it's certain that the role of British policy of divide and rule cannot be, okay, neglected. That was one of the most prominent reason for the development and growth of communalism, ठीक है। अब मुस्लिम लीग का इंपॉर्टेंट रोल था। अब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में किसका क्या रोल था, ये थोड़ा मुश्किल है, मेरी बात समझ गया ना, कंफर्मिटी के साथ कहना। बट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट वी कैन से दैट यस टू सम एक्सटेंट आईएनसी वाज रेस्पॉन्सिबल। आईएनसी मेड सम मिस्टेक्स आपको पता है, हिंदू कम्युनल पार्टीज, ओके, सम मिस्टेक्स देयर, ओके। तो इन सब को लेके आप एक बैलेंस ओपिनियन बना सकते हो ना, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल चर्चा कर लूंगा, हिंदू महासभा, आरएसएस और वीडी सावरकर, इन पे बात कर लेंगे। वीडी सावरकर वाज एन इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो, ठीक है, और वो इस पॉलिटिक्स से भी जुड़ते हैं। हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट क्या था उस पर भी बात कर लेंगे। आई थिंक दैट नाउ यू कैन राइट क्वेश्चंस, लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप आंसर लिखो ना, जो इवेंट्स हैं उनको रेफरेंसेस के तौर पे आंसर्स में इंक्लूड करना सीखो। यूज दोज इवेंट्स एज द रेफरेंसेस इन योर आंसर्स। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, तो ऐसे आपके मार्क्स क्या होंगे, इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ रिमेंबरिंग कि रट्टा मार लिया हमने एक 150 वर्ड्स का आंसर, तो वो भूल जाओगे आप एग्जाम में। अच्छा, जो अभी आपने पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थॉट, if you will write answer, okay, if you write answer 5 times the answer of the same question, all the times your answer will be different। हर बार आपके आंसर क्या होंगे, अलग होंगे। मेरी बात समझ गया ना। और यही चीज आपको सीखनी है। जब हम रट्टा मारते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बार बार हम वही आंसर लिखें जो हमने रटा था, और जब हम समझते हैं तो हम जितनी बार लिखते हैं उतनी बार उतने डायमेंशंस के आंसर लिख देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन है जहां दो से तीन आइडियाज को कनेक्ट किया गया है, तो यू विल बी एबल टू राइट एक्सेलेंट आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, हिंदू कॉम्युनल पार्टीज पे, और आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट आवर डिस्कशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक तो ये कॉन्टिन्यूटी में फिनिश कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आई थिंक इट विल टेक 3 लेक्चर्स और मैक्सिमम 4 लेक्चर, ठीक है ना। सो इट विल बी फ्राइडे तक हो जाना, आज मंडे है ना, हाँ, मतलब दिस वीक वी आर गोइंग टू फिनिश दिस पार्ट, ठीक है। एंड एएमसी विल बी इन कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूटी में बना रहेगा, ठीक है कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, ठीक है। इसमें बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आएंगे, बट ठीक है, वो हमारे जनरल डाउट्स हैं। बट एग्जाम में क्या लिखना उसके अकॉर्डिंग हमारा एक थॉट प्रोसेस मतलब स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। गॉट इट।
मेरी बात समझ गए ना? जो पॉपुलर डिबेट में सुन रहे हो कुछ भी उठा के नहीं लिख देना, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स, ठीक है ना? तो वो चीज लिखनी है जो बहुत सेंसिटिव नहीं हो, जो थोड़ी सी रेशनल हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है, एक्यूरेट हो, और उसके बेसिस पे अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है ना? तो कोई भाई बहुत ऐसी मतलब पॉपुलर डिबेट्स में चलने वाली बातें हैं जो थोड़ी किसी को किसी के थॉट को मतलब वो करें, तो वैसा नहीं लिखना है, ठीक है? ट्राई टू राइट अ वेल बैलेंस्ड आंसर। ओके, चलिए, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? हम्म, हाँ हाँ हाँ, लेटर लेटर पार्ट ना, अपीजमेंट क्या लिखा सर सैयद खान इन इज लेटर पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है? देखो, अगर आपको एक कंक्लूजन लेना हो सर सैयद अहमद खान वाज अ कॉम्युनलिस्ट और नॉट, या वो कॉम्युनल हम उनको माने कि नहीं, है ना? तो आप इस बात को बताओगे, है ना, कि सर सैयद अहमद खान वाज मेनली अ रिफॉर्मिस्ट। आपने क्या लिख दिया वर्ड? मेनली अ रिफॉर्मिस्ट। देखो बैलेंस कैसे करना है, ठीक है? बिकॉज हिज एफर्ट्स आर ओके, you can say motivated to bring reforms, okay, education and all this, कि रिवाइवलिज्म से हट के एक नया अप्रोच अगर कोई लेके आता है तो सर सैयद अहमद खान, उनके खिलाफ फतवे भी जारी होते हैं। मेरी बात समझ गए? ये बात है। आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स पता है अलीगढ़ मूवमेंट का, बट एक पार्ट में ये भी बताओगे, है ना, कि in his outlook when Sir Syed Ahmad Khan, okay, talks to protect the political right of the Muslims in India, so he suggested the idea of one class one vote, okay, in order to secure the political rights of minority Muslims in India. He think that after British rule will ended India, what will happen? The political rights of Muslims in India will not be secured. So he just gave his opinion about one vote one class. तो आप लिखोगे कि okay, with this opinion to some extent we can say that Sir Syed Ahmad Khan was communalist to some extent, ठीक है? But later, okay, the communalism, okay, appears when in its clear form, in the form of demands raised by Muslim League, okay, in the form of SES for the Muslims, वहां वो clearly आता है। तो Sir Syed Ahmad Khan was more reformist and less communalist। ये हो गया अप्रोच, ठीक है? मोर रिफॉर्मिस्ट टू सम एक्सटेंट, ही कैन बी कॉल्ड एज कॉमनलिस्ट। और वो हमने क्यों कहा, उसका एक आर्ग्यूमेंट भी हमने बता दिया 10 to 15 वर्ड्स में, ठीक है? गॉट दिस? दिस इज द आइडिया। और कोई डाउट? ठीक है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? मॉडर्न इंडिया में ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एक बैलेंस्ड, बड़ा मुश्किल होता है एक बैलेंस ओपिनियन पे चलना, तो ठीक है ना? कॉन्फिडेंस आया मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद? एमसीक्यूज जो आप कर रहे हो उसमें कितने कंफर्टेबल हो? आर यू कंफर्टेबल डूइंग एमसीक्यूज? ठीक है, हो जा रहे हैं, ठीक है? तो आपका एग्जाम सिर्फ इस क्लास बेसिस पे ही हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्लास में मैंने पढ़ाया वो मोर देन एनफ है, उसको रिवाइज करो, कुछ बार पढ़ो। उसमें एक दो टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने नहीं कराया है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, जैसे डिकोलोनाइजेशन में मैं एंटर नहीं किया हूँ, मलय पेनिनसुला वगैरह, या फिर यूएन पे मैंने ब्रॉड डिस्कशंस नहीं किए हैं, ठीक है? नेशनलिज्म का डिबेट एनसीईआरटी से मैंने नहीं कवर किया है, तो बाद में हम उसको करेंगे। वो मतलब जो मेन फ्रेम जो ट्रेडिशनल लेक्चर्स का है वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है? तो कुछ और लेक्चर्स जब अपलोड करूंगा तो विद द टाइम बीइंग, जब आपको टाइम हो वो वीडियोस देख लेना, तो आपके थॉट्स और बेहतर हो जाएंगे इन टॉपिक्स पे। बुक पे नहीं जाना है, बुक का कंटेंट मैं लेके आऊंगा वीडियोस के फॉर्म में, तो वो देख लेना है और नोट्स बना लेना है। सो व्हेनेवर यू आर वाचिंग द वीडियोस, कोशिश करो कि राइट, ठीक है, रनिंग नोट्स उसको लिखते हुए चलना है, तो एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।